Please give them a huge round of applause. Thank you, sir, for joining us for today's event. Please take your seats on the dais. Welcome, sir. Esteemed guest, retired Lieutenant Colonel Manoj Kumar Sinha, sir, Sena Medal. Respected Principal, Dr. Archana Kirti Chaudhary, Madam. Head of the Department of Electronics and Communication, Professor Rupesh Dubey, sir. Our dear faculty and staff members, and talented students. I am Anushka Yadav. And I, Sakshi Shivgekar. And we welcome you all in today's event of Youth for Nation. Before getting started, let us have a short introduction of Youth for Nation. The forum, Y4N, with members across the country, aims to connect with university-level youth to tackle India's challenges. At college and university levels, the coordinators plan the events in partnership with them, while the logistics are handled by the institution. Local dignitaries overcome the gatherings, and the forum unites the speakers for its Mera Bharat Mahan lecture series. Now, we request Honorable Chief Guest, retired Lieutenant Colonel Manoj Kumar Sinha, sir, Sena Medal, Dr. Archana Kirti Chaudhary, Madam, and Head of the Department of Electronics and Communication Engineering, Professor Rupesh Dubey, sir, for lighting the lamp. पद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती Thank you, sir. Thank you, ma'am. Now, I request our respected principal, Dr. Archana Kirti Chaudhary, Madam, to felicitate our guest with a sapling. Please give a huge round of applause. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Now, we would like to request a dynamic personality of our institution, whose guidance has enlightened the lives of many students. Our Honorable Principal, Dr. Archana Kirti Chaudhary, Madam, to share some words of wisdom with us. Very good morning to one and all. Today, no words of wisdom. Only the words of wisdom will listen from Lieutenant Colonel Manoj Kumar Sinha. His contribution is ultimate. और मुझे नहीं लगता कि मेरा कुछ भी कहना उनके सामने better होगा. So today is the day for Sinha sir. We welcome you on behalf of IPS Academy, on behalf of my dear students, my college, my academy. We are really proud to have you on this day. And you all are fortunate enough that you get the opportunity to listen Manoj Kumar Sinha ji. Thank you, sir. Most welcome to IPS Academy. Thank you, ma'am. Now, I request our team to kindly play the certain clips that we have on the basis of our esteemed chief guest. That's the toughest man I know. Air Force veteran Vishwanath Sinha, my dad. I remember as a child I was chased by an angry bull and I ran straight towards him crying. He held me in his arms and said, "Wipe those tears off. You are a man." I guess I stopped crying because I wanted to be like him, tough and strong. So no matter how hard you've taken a hit, no tears. And so I hid my pain like Dad would want me to. I did not want him to see my wounds.
that I am weak. I was being a man. But this time, he didn't ask me to wipe my tears off. That moment changed it all. That's the day we both realized that showing what you really feel doesn't make you less of a man. Raising a strong boy also meant telling him it was okay. It was okay for boys to cry. Men can cry. Even soldiers can cry. Because our pain reveals the best in us. ऐसा है कि सेना में जब भी युद्ध की बात की जाती है, किसी भी के भी अनुभव की बात की जाती है, तो सिपाही के युद्ध को सभी वही जानते हैं कि वो शत्रु से लड़ रहा है, बम चल रहे हैं, गोलियां चल रही हैं। लेकिन सेना में सिपाही एक और युद्ध लड़ता है। उस युद्ध के बारे में ज़्यादा चर्चा इसलिए नहीं होती है कि वो युद्ध बताने के लिए बहुत कम लोग जीवित रहते हैं। वो युद्ध होता है जब सिपाही घायल हो जाता है तो मृत्यु से युद्ध करना शुरू करता है। मुझे आप लोगों ने मंच दिया है इतना बड़ा, मैं धन्य हूँ, कृतज्ञ हूँ आपका। मैं वो अनुभव बताना चाहता हूँ। एक लड़ाई खत्म हुई, दूसरी शुरू। वो लड़ाई शत्रु से थी, ये लड़ाई मृत्यु से है। वो लड़ाई सम्मान की थी, ये लड़ाई प्राण की है। एक लड़ाई खत्म हुई, दूसरी शुरू। लड़ाई वो भी थी मुश्किल, पर ये थोड़ी ज्यादा है। युद्ध हो और खून बहे, युद्ध हो और खून बहे, सेना में आम कहानी है। पर आज बारी है मेरे खून से धरती की प्यास बुझानी। ये जब मैं गिर गया था, जमीन पर पड़ा था, उस समय की अवस्था की बात बता रहा हूं मैं जमीन पर पड़ा हूं, खून बह रहा है, धरती में सुख रहा है, मैं देख रहा हूं, मुझे मृत्यु साक्षात सामने दिख रही है। तब की बात कर रहा हूं मैं कि युद्ध हो और खून बहे, सेना में आम कहानी है, पर आज बारी है मेरे खून से धरती की प्यास बुझानी है। विश्वास हमेशा रहता था, विश्वास हमेशा रहता था, हर युद्ध जीत कर आऊंगा, पर आज लग रहा इस युद्ध में शायद ना जीत पाऊंगा। एक लड़ाई खत्म हुई, दूसरी शुरू। लड़ाई वो भी थी मुश्किल, पर ये थोड़ी ज्यादा है। अब अगली अवस्था जब जवान मेरे को लेके भागने लगे, तब की बात है ये। उस युद्ध में मैं जवानों से कहता, उस युद्ध में मैं जवानों से कहता, आगे बढ़ो, प्रहार करो। आज वो मुझे कह रहे, साहब थोड़ा इंतजार करो। लड़ाई थी वो साहस की, लड़ाई थी वो साहस की, और थी वो शौर्य की। लड़ाई ये भी है साहस की, पर ज्यादा है ये धैर्य की। एक लड़ाई खत्म हुई, दूसरी शुरू। लड़ाई वो भी थी मुश्किल, पर ये थोड़ी ज्यादा है। प्राणों की बाजी लगाकर शत्रु पर जो वार किया, शत्रु को तो मार दिया, पर बाजी शायद हार गया। लड़ाई वो भी थी एक ऑपरेशन, लड़ाई ये भी होगी एक ऑपरेशन। एक लड़ाई खत्म हुई, दूसरी शुरू। लड़ाई वो भी थी मुश्किल, पर ये थोड़ी ज्यादा है। मुझसे ज्यादा मुश्किल मेरे घर वालों की कथा थी। माता पिता, पत्नी, बच्चे, बड़ी भारी उनकी व्यथा थी। एक उनकी आंखों का मैं एक अकेला तारा था। मैं ही उनकी दुनिया था, मैं ही एक सहारा था। लड़ाई मेरी थी मुश्किल, पर उनकी थोड़ी ज्यादा थी। एक लड़ाई खत्म हुई, दूसरी शुरू। और अंत में है कि जब आईसीयू में 48 घंटे के बाद जब होश आया, मतलब डॉक्टर्स ने तो बोल दिया था नहीं, 80% चांस है, नहीं बचेगा। तो आईसीयू के अंदर लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे आंख खुली, एहसास हुआ, आंख खुली, एहसास हुआ, जीवित हूं, न विश्वास हुआ। सीओ साहब बोले, तुम वो लड़ाई जीत गए। डॉक्टर साहब बोले, तुम यहां भी लड़ाई जीत गए।
this, I requested retired Lieutenant Colonel Manoj Kumar Sinha Sir, Sena Medal, Gallantry Awardee, Speaker, Corporate Trainer, Actor, Influencer, Writer and Poet on the podium to start his session. तो लड़ाई शुरू करें? ओके, राइट। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, गुरुजनों, देवी और सज्जनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार। मैं जब लेडीज एंड जेंटलमैन या देवी और सज्जनों बोल रहा हूँ तो यानी कि मैं आपकी तरफ संबोधित हूँ। अगर आप लोगों को ये आदत है सुनने की संभवतः कि मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर चिल्ड्रन, so ladies and gentlemen, the time is up. The time for you to be addressed as my dear children is over, because we are here to become grown-up ladies and gentlemen of tomorrow. और आज tomorrow की ही बात करेंगे हम आपसे, alright? और मैं इसलिए, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि आप अपना बचपन जो है खो दें, अपने अंदर का बच्चा पूरे जीवन आप जिंदा रखें, जीवन का आनंद लें। लेकिन होता कैसे है ना कि कभी कभी कि बाहर की दुनिया इतनी आसान नहीं है, इतनी जटिल। कुछ लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे भ्रम फैला रखे हैं। प्रकृति भी अपनी चुनौतियां पैदा करेगी, वो तो अपनी तरफ है, लेकिन लोग जो हैं वो काफ़ी चुनौतियां आपके सामने पैदा करेंगे। उस समय आपको अपना बचपन थोड़ी देर साइड में रखना पड़ेगा और यू विल हैव टू डील विद देम लाइक ग्रोन अप लेडीज एंड जेंटलमैन हु गॉट द विजडम, करेज एंड गट्स, राइट। मैं इसलिए बता रहा हूँ ये कि मेरे साथ भी ऐसा ही था। My father played his role to make me grown up man, you know, as you saw in that video. बचपन से ही बोलते रहे, बट देन मैं जो था मैं उस पर आता हूँ। लेकिन यहाँ पर देखिए, पहले मैं विषय पे बात करता हूँ, फ्यूचर ऑफ भारत एंड योर्स, अर्थात कि भविष्य भारत का एवं आपका। 5 शब्दों का ये विषय है, ये शीर्षक मैंने ही दिया था। लेकिन जब मैं लिख रहा था तो मैं सोच रहा था कि वस्तुतः ये विषय जो है सिर्फ 3 शब्दों का है। लेकिन फिर मुझे लगा कि आजकल, जैसे मैंने कहा कि इतनी सारी भ्रम की स्थिति पैदा कर दी गई है, तो मुझे लगा कि वहाँ से जब मैं भेजूँगा तो ऐसा ना हो कि वो 3 शब्दों में पूरा पर्याप्त, इसका मतलब शायद आप ना समझें। इसीलिए मैंने कहा वर्तमान के लिए मैं 5 शब्द भेजता हूँ, और वो 3 शब्द कैसे, ये 3 शब्दों में कैसे समाहित हो सकता है मैं यहाँ आके बता दूंगा। ये इसीलिए बोल रहा हूँ कि 3 शब्द में हो सकता है भविष्य भारत का एवं आपका, या अंग्रेजी में फ्यूचर ऑफ भारत एंड योर्स, बिकॉज इट कैन ऑल्सो बी टोल्ड कि भविष्य भारत का पर्याप्त है, या हम ये भी कहें भविष्य आपका पर्याप्त है, क्योंकि आप और भारत अलग नहीं है। कहीं ये भ्रम हो किसी को तो भारत और आप अलग हैं, तो उस भ्रम को आप दूर कर लीजिए, और आगे आने वाले पलों में, आगे जब मैं बताऊंगा तो मैं उसी भ्रम को हटाने का प्रयास करूंगा। क्योंकि आप हैं तो भारत है, जो आपका भविष्य होगा वही भारत का भविष्य होगा, और जो भारत का भविष्य होगा वो आपका होगा। इन दोनों को आप अलग अलग करने का दुस्साहस मत कीजिएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा। कैसे, वो मैं अभी बताता हूँ आपको। तो मैं ये कह रहा था कि मैंने कहा अपना बचपन जीवन रखिए। मैं आपकी तरह से मैं भी था, और मेरे पिताजी हालांकि बचपन से मुझे प्रयास कर रहते थे। ही ऑलवेज टोल्ड मी टू यू नो ग्रो अप, एंड यू सॉ दैट इन दैट वीडियो। छोटे थे तभी से बोल रहे थे, बट जो उनके सामर्थ्य था वो बताया। लेकिन फिर भी मैंने अपने बच्चे की तरह जो एक भोलापन होता है वही लिए हुए बड़ा हो गया। कहने का तात्पर्य ये है कि बाहर की दुनिया जो वास्तविक है उसको समझने का प्रयास मैं नहीं कर रहा था। अपने एक पॉजिटिव थिंकिंग, नाइस इनोसेंट और एटीट्यूड से मैं दुनिया को देखता था। मुझे सब कुछ बहुत बढ़िया लगता था, हर व्यक्ति बढ़िया लगता था। मुझे लगता था कि क्या दोष है क्या नहीं है, किसी में क्यों कोई बुरा होगा, क्यों कोई बुरा सोचेगा, क्या बुरा हो, कहीं कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो अच्छा है। विशेष रूप से 3 धारणाओं की बात करूंगा, जिन 3 धारणाओं को लेकर मैं बड़ा हुआ था। भ्रम बताऊंगा, और वो तीनों धारणाएं मेरी जो है सेना में आके टूटी थी। पहली धारणा ये थी, वो मेरी आस्था। वो आस्था ऐसी थी, मेरे पिताजी वायुसेना में थे, कभी इस स्टेशन में पोस्टिंग, कभी अगले स्टेशन में, कहीं नए स्थान पर कहीं नए स्थान पर। जहाँ भी जाते थे हर एयरफोर्स स्टेशन में एक ना एक मंदिर होता था। उस मंदिर में एक मुख्य जो देवी या देवता होते थे। तो मैं ये सोचता था उस समय बच्चे के रूप में कि यहाँ पर जो है हनुमान जी की मूर्ति है, तो इस इलाके के जो इंचार्ज हैं वो हनुमान जी हैं। होता है ना, कहीं गए तो यहाँ पर कलेक्टर कौन है, यहाँ पर DIG कौन है, तो हमें लगा यहाँ हनुमान जी हैं। तो उतने दौरान जितने दिन मैं वहाँ रहता था, तो कोई कुछ मांगना हो तो मैं हनुमान जी का नाम लेता था। छोटी मोटी चीज़ें मांगते ना, हे भगवान पास हो जाऊँ, हे भगवान ये हो जाए, तो मैंने कहा यहाँ पर इंचार्ज हनुमान जी है। फिर किसी तीसरी जगह गए, वहाँ दुर्गा जी की मूर्ति मंदिर में, मैंने कहा यहाँ इंचार्ज दुर्गा दी है। ये मेरी आस्था बड़ी फ्लेक्सिबल थी, मैंने कहा इसमें क्या दिक्कत है।
और बगल वाले के मैं देखता था मेरे साथ जो है बच्चा कोई दूसरी आस्था रखता था, इवन मोर द मेरियर यार। मैंने कहा बढ़िया है, जितने हो जाएं आस्था, तो आपकी अलग है आपकी अलग है, तो मुझे बड़ा आनंद आता। अच्छा कि तुम्हारा यहाँ स्कूल में आता ना टिफिन लेके, तुम क्या लेके आए हो? अच्छा तुम पराठे लेके आए हो, मैं तो पुलाव लेके आया हूँ, तो बहुत बढ़िया है ना, अलग अलग जितने हो जाएं। तो मुझे आनंद आता था, जितनी आस्थाओं का रूप देखता था, बड़ा फ्लेक्सिबल था मेरा। और ज़्यादा मैं कोई इसमें सीरियस कभी हुआ नहीं। वो पूजा की एक दीवार पे लगी रहती थी और एक तख्ती सी लगती थी, फिर आरती की पुस्तिका होती थी, वो भी मुझे पूरे दिन में याद नहीं हुई। जब भी पढ़ा जाता था तो मैं निकाल के उसको पुस्तिका से पढ़ता था। इतनी ही मेरी आस्था थी, बड़ी फ्लेक्सिबल सिंपल, इससे ज़्यादा मैं सोचता नहीं था। उसके बाद दूसरी ये थी कि पिताजी मेरे चूँकि वायुसेना में थे तो ट्रैवल हम बहुत करते थे। मैं रहने वाला बिहार का, कभी पिताजी की पोस्टिंग बैंगलोर, तो 3-3 4-4 दिन रेल में जाना पड़ता था। रेल में जाना पड़ता था, मैं खिड़की के पास खड़ा हो जाया करता था अक्सर, और बाहर देखा करता था, खेत निकल रहे हैं, खलिहान निकल रहे हैं, गांव निकल रहे हैं, तालाब निकल रहे हैं, नदियाँ निकल रही हैं, छोटे छोटे गांव शहर निकल रहे हैं, और मैं है ना हरियाली दिख रही है, कभी पर्वत दिख, छोटे मोटे जो हैं वो दिखते थे। और मुझे बड़ा अद्भुत लगता था, अपना देश मनोरम लगता था यार, कितना खूबसूरत है। बोलते रहते थे उठ जा भाई बैठ जा, मैंने कहा ना मैं दिखता रहूँ खिड़की से। और मुझे ऐसा लगता था, भूगोल में देखा था, ज्योग्राफी में पढ़ा है कि भारत की सीमा है, लेकिन वस्तुतः सामने है, न जाने क्यों धारणा जो परसेप्शन है वो मुझे लगता था कि मेरा देश तो अनंत है, खत्म ही नहीं होता। क्योंकि मैंने कोई सीमा भी नहीं देखी, कोई नेपाल भूटान की भी सीमा नहीं देखने का अवसर मिला। तो मैंने कहा तो चलते जा रहा है ट्रेन और ख़त्म ही नहीं होता यार, देश तो हमारा अनंत है। और तीसरी मेरी धारणा ये थी कि मैं ये समझता था, मैंने कहा ना बचपन का इनोसेंट माइंड, एंड सो मैं ये समझता था कि पीस जो है, शांति, वो हर व्यक्ति की बेसिक बुनियादी रिक्वायरमेंट है। रोटी कपड़ा मकान और उसकी कॉन्जुगल नीड्स के अलावा अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो वो शांति है। और दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो शांति से नहीं जीना चाहेगा। और इसी धारणा के साथ मैं रहता था। कहीं भी लड़ाई की बात सुनता था तो मुझे बड़ा दुख होता था यार, इसको समझाया जा सकता था, ये हम प्रिवेंट कर सकते थे, वी कुड हैव स्टॉप्ड इट। और ऐसा भी हुआ, कभी कभी मेरी भी हो गई। तो जब मेरी हुई तो मैं, जब भी ऐसा होता था तो सामने वाला जब गर्म होता था तो मैं समझाने का प्रयास करते करते क्या हुआ कि ठीक है हाथ उठा दिया, तो फिर कोई चारा बचा नहीं, फिर हम भी उलझ गए। लेकिन इट डजंट मैटर वेदर आई वन दैट बैटल और लॉस्ट दैट बैटल, इवन इफ आई वन दैट बैटल आई वाज नेवर हैप्पी, बिकॉज आई ऑलवेज फेल्ट कि यार आई कुड नॉट प्रिवेल ऑन इन दिस माइंड। मैं समझा सकता था कि यार सुन भाई, अरे सुन लिया, तब तक तो शुरू हो गया। और मैं इसको अपनी विफलता मानता था। मैं ये मानता था, पानी के देंगे थोड़ा सा, मैं ये मानता था कि कोई मुझसे बेहतर व्यक्ति होता तो इसको समझा देता। मैं छोटा रह गया, आई कुड हैव एक्सप्लेन्ड दैट मैन। तो मैं ये समझता था, बॉटल ही दे दीजिए बस, नहीं जस्ट लीव इट, गिव मी अ बॉटल बस। तो मैं ये मानता था कि मैं छोटा रह गया और मेरे से बेहतर कोई समझदार व्यक्ति होता तो समझा देता। शायद सर होते तो समझा देते, शायद इसके पिताजी होते, मेरे पिताजी होते तो समझा देते। मैं छोटा रह गया। मेरा क्लासमेट ही मुझे लगता था कि फलां बंदा है, वो मुझसे ज़्यादा मैच्योर है, वो होता ना तो आज ये लड़ाई नहीं होती। समझाया तो जा सकता ही था, बस मैं छोटा रह गया। ये बात मान के मैं रहता था। ये 3 धारणाएं थी मेरी। ये तीनों धारणाओं को लेकर मैं सेना में भर्ती हो गया। और सेना में भर्ती हुआ, पहली पोस्टिंग लाइन ऑफ कंट्रोल पर थी। जब मैं वहाँ पहुँचा तो लाइन ऑफ कंट्रोल की बटालियन थी, बटालियन हेडक्वार्टर से कंपनी में, कंपनी से आगे हम चलते जा रहे थे। पहली मेरी पेट्रोल थी और मैं चल रहा हूँ। अचानक मेरे साथ के सिपाही ने मेरे कंधे पर यहाँ थपकी दी, बोला साहब रुक जाओ। मैंने क्या हो गया? बोला साहब हमारा इलाका ख़त्म, इसके आगे एक कदम उठाएंगे तो वो देख रहे हो, वो पाकिस्तान का पोस्ट है, गोली मारेगा वो। और मैं इस धारणा के साथ बड़ा हुआ था कि हमारा देश अनंत है। अच्छा, दूसरा ये था कि मुझे देश में कोई प्रॉब्लम भी नहीं लगती थी। इनोसेंस की बात कर रहा हूं ना मैं, वो न्यूज यूज में, इट्स नॉट अ राइट एग्जांपल, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग, यू शुडंट ग्रो द वे आई ग्रू अप, राइट। तो ऑन दिस एस्पेक्ट, ये जो 3 एस्पेक्ट, इसी की बात बता रहा हूं मैं। तो मैं कोई ज़्यादा जनरल नॉलेज, ये वो अखबार तो मतलब बड़े बड़े घरों में अखबार आता था, हमारे घर में तो आता नहीं था। तो मैं ज़्यादा न्यूज़ जनरल नॉलेज या करंट अफेयर पे ध्यान ज़्यादा देता नहीं था। और मैंने कहा सब तो बढ़िया है देश में यार, आइडियल कंट्री है मेरा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, एवरीबडी इज़ फाइन मैन। एंड ऐसा पॉजिटिव इतना ज़्यादा कि मैं बिहार का रहने वाला, ना बिजली ना सड़क, मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं लगती, बहुत आनंद आता था गांव। इनफैक्ट इफ यू गिव मी एन ऑप्शन, आज मेरे गांव में बिजली भी है और सड़क भी है, 4 लेन है, फिर भी कोई बोले ऑप्शन दे तो मैं कहूँगा यार पुराना वाला ले आओ यार, नहीं चाहिए बिजली, नहीं सड़क चाहिए। बड़ा आनंद आता था, लोग प्रेम से रहते थे तब। तो मुझे सब बड़ा अच्छा लगता था, मुझे कोई खराबी लगती ही नहीं थी। देश में भी कोई खराबी नहीं लगती थी। और कहते हैं ना, जब कोई आपको पीड़ा ना हो तो शरीर को भी आदमी ग्रांटेड ले लेता है। Only when you stuck with the disease and it kind of threatens, then you suddenly feel no, I need to take care of this guy.
तो मुझे ऐसा भी नहीं लगता था देश के लिए कुछ करना चाहिए, करना, देश में कोई प्रॉब्लम ही नहीं तो करना क्या है, सब कुछ बढ़िया है। तो वहां पर मैं खड़ा हुआ पहली बार और मैंने देखा कि यार ये एक तो देश की सीमा है, यहां देश मेरा खत्म हो रहा है और इस देश को भी वो थ्रेटन कर रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे पहली बार फिर वहां से जब पलट के मैंने घूमा अपने देश की तरफ देखना शुरू किया तो मुझे देश पहली बार समझ में आना प्रारंभ हुआ। उसके बाद से समझ ही रहा हूं, आज तक समझ रहा हूं, जितना देखता हूं, जितना समझता हूं और समझते जा रहा हूं। वहां से मेरी एक्चुअली ज्ञान की यात्रा शुरू हुई। उसके बाद था सेना में है कि आपको शत्रु के बारे में बताया जाता है, उसका जो मटेरियल है, उसकी बातचीत है, रिकॉर्डिंग्स हैं, इंटरसेप्ट्स हैं, वो सब बताया जाता है, उनके जो लिटरेचर हैं जो कैप्चर होते हैं वो बताया जाता है। तो मेरे को ये इतना भयावह लगा कि इतना बड़ा यार, यहाँ तो पूरा हिसाब किताब है भारत को ख़त्म करने का। और मैंने कहा माय गॉड यार, मैं तो ग्रांटेड ले रहा था। एंड आई एम टॉकिंग ऑफ व्हेन आई वेंट इनटू दैट आर्मी, जब मैं गया था तो अफगानिस्तान में जो पहले सोवियत संघ हुआ करता था, वन ऑफ द 2 सुपर पावर्स, उसको परास्त करने के बाद लोग यहां कश्मीर में आ रहे थे और उस कॉन्फिडेंस से आ रहे थे कि भाई हमने यूएसएसआर को झुका दिया है। वो यूएसएसआर जो टैंक, फाइटर एयरक्राफ्ट, गनशिप्स, आर्टिलरी, हर चीज का प्रयोग करता था, हमने उसको दांतों चने, उसको हमने लोहे के चने चबवा दिए, उसको हरा दिया। तुम किस खेत की मूली हो यार। और हम लोग तो अपनी सेना की भी पूरी सामर्थ्य का प्रयोग नहीं कर रहे थे। हम तो AK-47 टू AK-47 लड़ रहे थे। हम तो आतंकवादियों से लड़ने के लिए फाइटर एयरक्राफ्ट, आर्टिलरी और तोपों का प्रयोग तो नहीं कर रहे थे। हम तो बराबर लड़ रहे थे। तो उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई था उस समय। वास्तव में ऐसा लग रहा था कि यार ये तो तोड़ देगा देश को। इट रियली फेल्ट स्केरी एट दैट टाइम। देश वहां से समझ में आना शुरू हुआ। और उसके बाद फिर मैंने कहा ना कि जैसे जैसे फिर मैंने कहा, लेकिन मेरा बचपन अभी भी वो इनोसेंस कहीं जाने को तैयार नहीं था, मानने को तैयार नहीं था कि यार शांति से क्यों कोई नहीं रहना चाहेगा। मैंने कहा ट्राई करता हूं मैं। और मैं वहां जो आतंकवादी थे वो रेडियो सेट पे थे, कुछ पकड़े भी जाते थे और कुछ रेडियो सेट पे बात करते थे, तो मैं उनके फ्रीक्वेंसी पे आके ट्राई करता था कि उनसे आई एस्टैब्लिश ए कन्वर्सेशन विद देम। एट टाइम दे यूज्ड टू स्विच इट ऑफ, एट टाइम वो भी जंगल में बैठा बोर हो रहा, कहीं हम भी बैठे तो शुरू हो जाता था चलो टाइम पास ही करते हैं। तो आई स्टार्टेड टॉकिंग टू देम एंड आई सिंसियरली, विद अटमोस्ट सिंसियरिटी मैं ये प्रयास करता था कि यार हम क्यों लड़ रहे हैं, वाई आर यू फाइटिंग। जैसे ठीक वैसे जैसे मैं स्कूल में करता था, ये ना आप क्यों लड़ रहे हैं यार। तो मैंने कहा क्यों लड़ रहे हैं। मेरे जो लोग थे, कलीग थे, वो हंसते थे, तू किससे बात कर रहा है भाई, आतंकवादी है ये। मैंने नहीं सर, ट्राई तो करेंगे ना, शांति से तो रहना चाहेगा ना, क्यों नहीं रहना चाहेगा सर, वाई वुड यू नॉट लिव, यू लाइक टू लिव इन पीस। और मैं ये प्रयास करता रहता था रोज दिन रात, जहां जिधर मौका मिले आई केप्ट ऑन डूइंग दैट। एंड वो टेररिस्ट वाला कन्वर्सेशन चलाएंगे, उसी को एक बार एक मेरे ऑपरेटर ने रिकॉर्ड कर लिया था, तो उसको मैंने फिर बाद में यहाँ यूट्यूब पे डाला था। तो आप सुनिए एक बार कि मैं किस प्रकार से बात करता था और उनका क्या रिएक्शन होता था। या तो हमारे तुम्हारे क्या कर रहा है यार, हम सब एक ही तो हैं। तेरे खून और मेरे खून में कोई फर्क है क्या? ये क्या तुमने इंसानियत के बीच में दरारें डाल के रखी हैं कि तुम्हारा है और हमारा है? हम सब एक ही हैं क्या? तेरे हम 4 हाथ है क्या? मेरे भी 2 हैं, तेरे भी 2 हैं, तेरी भी 5-5 उंगलियां, मेरी भी 5-5 उंगलियां। एक ही दवाई से तेरा भी बुखार ठीक होता है, मेरा भी बुखार ठीक होता है। तो ये तूने हमारा तुम्हारा क्या लगा रखा है? एक दफा मुसलमान होके देखो, ये तो चलो सही अपना कितना मजा आया, कितना सुकून है। क्या हुआ कि कभी उधर है कभी उधर है, ये वो ये लोग आपको मतलब सही है। अब एक साथ नहीं आते अम्मा यार, तुम्हें तो बोल ही नहीं रहे हम। हमारा तो ये मुल्क ही है इतना बड़ा और इतना दिल इसका इतना बड़ा है कि यहाँ मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बुद्ध सभी रहते हैं। इस मुल्क का एक ही मजहब है, मोहब्बत का, भाईचारे का। इंसान का और कोई मजहब नहीं होता है, नाम चाहे जो ले लो, सबके सब पहले इंसान है और मोहब्बत एक दूसरे से करते हैं और रहते हैं। एक दूसरे के खिलाफ नफरत करना ये आप मत गलत सिखाओ। तो ना आप ऐसा करो, अपना इस्लामी कानूनों को सामने रखो, अपना अफगानिस्तान में आप क्या कहते हैं उसको, हिंदुस्तान में नामत करो, तो हम आपके पीछे हैं। यार अफगानिस्तान और ये सब छोड़ो ना, हम यहाँ बताया ना हमने, जो लोग चाहेंगे वो होगा। जो लोग जिस मजहब को चाहेंगे वो
उस मजहब की पूरा इबादत कर सकते हैं। जो लोग जिस लीडर को चाहेंगे वो उस लीडर के वोट दे सकते हैं। यहाँ पर उसको पूरी आजादी है। यहाँ कोई जबरदस्ती ऐसा नहीं है कि नवाज शरीफ को लोगों ने वोट दिया और मुशर्रफ ने उसे खा लिया। ऐसी कोई दादागिरी, कोई जबरदस्ती नहीं है। लोग प्यार मोहब्बत से जिसको अपना नेता चाहते हैं, जिसको अपना लीडर चाहते हैं, तो उसको चुन सकते हैं। आप कहते हैं ना हम इस्लामिक रूल ले आओ और आप भी रहो उसमें, हम भी रहेंगे, तो आप लोग नहीं मानते, लड़ाई तो होनी है। अरे इस्लामिक रूल या कोई भी रूल वो हो जिसमें लोग खुश हों। लोगों की जो मर्जी है वो हुकूमत आने दो। तुम अगर चाहते हो, तुम समझते हो कि लोग तुम्हें ज्यादा पसंद करते हैं, तो मैदान में आ जाओ, लोग तुम्हें वोट दे देंगे, तुम यहाँ का वजीर आला बन जाओ, फिर हम तुम्हारी बात मानेंगे। यार हम तो फौजी जो है, हम कभी हुकूमत करना नहीं चाहते हिंदुस्तान में पाकिस्तान की तरह। जो हमारे लीडर हैं हम उन्हीं की बात मानते हैं। तुम बन जाओ लीडर, हम तुम्हारे को सलूट मारेंगे कल। So, this is the kind of conversation I used to have day in, day out, at every drop of opportunity that I got. But यहाँ पर क्या हुआ कि slowly I began to realize here कि I am speaking to a different animal now. पहली बार मुझे ऐसा महसूस होना प्रारंभ हुआ कि यहाँ पर ये मेरी विफलता नहीं है। इस आदमी को साक्षात भगवान बुद्ध भी आ जाएं, नानक भी आ जाएं, इसको नहीं समझा सकते। ही इज़ बियॉन्ड। और जो मेरा तीसरा भ्रम था, आस्था, फ्लेक्सिबल है, क्या है, दिक्कत क्या है। मैंने कहा यार पहली बार मैंने देखा कि किसी की आस्था के लिए कोई इतनी मतलब खून खराबा, सब कुछ बर्बाद करने को तैयार है, पूरी मानवता को ख़त्म करने के लिए तैयार है। तो मेरे जो तीन मुख्य धारणाएं जिनके साथ मैं बड़ा हुआ था, वो तीनों धारणाएं मेरी सेना में अनुभव के आधार पर, ये तीनों धारणाएं मेरी ध्वस्त हो गई। और उसके बाद पहली बार मुझे ऐसा महसूस हुआ जब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि मैं आई एम डीलिंग विद अ डिफरेंट एनिमल हियर। उसके बाद मैं जो शांति प्रिय हूँ, मैं आज भी शांति प्रिय हूँ। आप मुझे वैसे आम जीवन में मिल जाएं कहीं पर, तो आप मुझे सड़क पर टकरा जाएं, धक्का दे दें, तो इससे पहले कि शायद आपकी भी गलती हो, मैं पहले माफ़ी मांगूंगा और कोशिश करूंगा कि वहाँ से निकल जाऊँ। कोशिश करूंगा मैं अपना रास्ता बदल दूँ। जहाँ तक हो सके मैं कॉन्फ्रंटेशन अवॉइड करता हूँ। आज की डेट में भी वेजिटेरियन आदमी हूँ, अपने स्वाद के लिए मैं किसी जीव को नहीं काटूंगा। लेकिन इसके बाद जब ये बात का मुझे बोध हो गया ये कौन सा जंतु है, और दूसरा कि ये व्यक्ति इस देश, इस भारत माता को नुकसान करने का ध्येय भी रखता है, तो आई वॉज, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वॉज डेस्परेट टू चॉप ऑफ हेड्स एंड आई डिड दैट टू माई हार्ट्स कंटेंट। फिर उसके बाद खूब मारा, बहुत आनंद आया मुझे। प्लीज डोंट misunderstand me, I'm not a sadistic man. But anybody who thinks he can have an ulterior intention towards this great land called Bharat, वो मेरे हिसाब से अगली सांस लेने का अधिकारी नहीं है। So get that very straight in your mind. Right? Get that very straight. There is a battle coming your way and you need to get prepared. So that's what I'm here to tell you and make you aware of what that battle is. Right? तो आज का टॉपिक जैसे कहा, फ्यूचर, भविष्य। अब किसकी भविष्य की बात करूं, आपका या भारत की? दोनों एक ही है। पहले स्टार्ट विद भारत की बात करता हूं और फिर मैं बताता हूं कैसे ये आपका भी है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूचर जो भारत का है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर है जिसका आजकल बहुत चर्चा हो रही है और आप सब लोगों को शायद पता भी होगा कि भविष्य में भारत जो है 2047 तक भारत विकसित देश बनने वाला है। वी गोइंग टू बी डेवलप्ड इकोनॉमी बाय 2047। यू ऑल नो दैट, राइट? बट ये सिर्फ जानते हैं, ये एक नॉलेज है। ये एक जीके का क्वेश्चन है, व्हेन डू यू थिंक इंडिया इज प्लानिंग टू बी 2047? 2047 लिख दिया। आई डू नॉट नो वेदर इट इज sunk in from here to here. What does it mean for you? I'll try and bring that down and try and make it sink in you today. What does the 2047 mean? आप सब यहाँ पर विज्ञान के विद्यार्थी हैं, गणित में बहुत तेज हैं। 2047 में आप लोगों की आयु क्या होगी? तुरंत अपने मन में गिन लीजिए। 2047, what is going to be your age? Mid 40s? आप सबके साथ मिड 40s में होंगे?
अर्थात 2047 तक आप सब मिड 40s में होंगे। इसका तात्पर्य ये होता है कि आप यहां से निकलकर जीवन के जिस क्षेत्र में भी जाएंगे, जो भी काम करेंगे, चाहे आप व्यापारी बने, चाहे आप वैज्ञानिक बने, चाहे आप IAS अधिकारी बने, चाहे कोई जुडिशरी में जाए, चाहे आप सेना में जाए, चाहे आप पुलिस में जाए, चाहे आप शोध करें, चाहे आप अर्थव्यवस्था में जाएं, चाहे आप बैंकिंग में जाएं, आप जीवन के जिस क्षेत्र में भी जाएंगे मिड 40s में होंगे। अर्थात उस समय आप उस क्षेत्र के सबसे अनुभवी व्यक्ति होंगे, उस क्षेत्र का आपके पास पर्याप्त ज्ञान होगा। संभवतः आप मोस्ट प्रोबेबली आप उस क्षेत्र का उस समय नेतृत्व कर रहे होंगे। इसका मतलब यह होता है कि 2047 में भारत जब बाकी सारे देशों को पीछे छोड़ता हुआ सबसे आगे, सबसे ऊपर जा रहा होगा, तो वो उसको आगे ले जाने वाले कंधे आपके होंगे। प्लीज लेट दैट सिंक इन। समझ में आया आपको आपका दायित्व क्या है? यू नॉट जस्ट एनी ऑर्डिनरी जनरेशन विच इज बॉर्न ऑन दिस ग्रेट लैंड कॉल्ड भारत। हर साल पीढ़ी आती है, हर साल नए क्लास आते हैं, हर 10-12 साल में एक नई नई पीढ़ी आती रहती है। यू आर अ स्पेशल डैम जनरेशन, आई एम टेलिंग यू व्हाई। भारत के अनादिकालीन कालखंड में सदैव जो है कुछ वर्षों के बाद एक ऐसी अनादिकालीन इतिहास में एक कालखंड आता है बीच बीच में, जहां पर इस देश की नियति का निर्धारण होना होता है। हर बार जब भी ऐसा वो कालखंड आता है, तत्कालीन जो पीढ़ी होती है जिसके हाथ में इस देश की बागडोर होती है, वो निर्णय करती है कि इस देश की नियति क्या होगी। पिछली बार वो सबसे महत्वपूर्ण कालखंड था जब ये देश अपने स्वतंत्रता का संग्राम लड़ रहा था। उस समय भी कुछ लोग इस देश का सौभाग्य बन गए और कुछ लोग इस देश का दुर्भाग्य बन गए। उसके बाद का जो सबसे महत्वपूर्ण संघर्ष रथ कालखंड आने वाला है, वैसे तो वो प्रारंभ हो चुका है हमारी पीढ़ी के साथ साथ, लेकिन ये खेल जब अपने फाइनल ओवर्स में होगा, 3 ओवर 40 रन 2 विकेट, उस वाली स्थिति में जब होगा, तब आप इस मैदान पे होंगे, तब आप लोग मैदान पे होंगे। जीत या हार आपके हाथ में होंगे। इट्स नॉट गोइंग टू बी एन इजी गेम, लेट मी टेल यू दैट। तो आप समझ लीजिए कि हर 70, 80, 100, 150, 200 वर्षों के बाद बीच में ये कालखंड आता है, और उस समय जो पीढ़ी होती है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है। एंड यू आर दैट जनरेशन विच इज गोइंग टू टेक द चार्ज ऑफ दिस कंट्री इन वन ऑफ इट्स मोस्ट क्रूशियल मोमेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ दिस लैंड। लेट दैट सिंक इन। If you think life is going to be a party, ladies and gentlemen, the kind of party that you think life is, I'm sorry, I'm going to disappoint you. But हाँ, अगर पार्टी मनाने का अपना अंदाज आपका दूसरा है, जो हमने सेना में देखा, या बहुत सारे लोग कर्मठ लोग अपने अपने क्षेत्र में देखते हैं कि जब कोई चुनौती को वो पूरा कर लेते हैं, जब कोई लड़ाई पर विजय पा लेते हैं, उसके बाद जो पार्टी होती है अपने अंदर से, उसमें कोई बाहर से एक्सटर्नल स्टिमुलेंट नहीं चाहिए होता है। यू डोंट नीड म्यूजिक मैन, यू डोंट नीड ड्रिंक्स, यू डोंट नीड ईट्स, यू डोंट नीड स्नैक्स, यू डोंट नीड अ डांस फ्लोर, यू डोंट इवन नीड एनी कंपनी मैन। And then the enjoyment that you have after a hard-fought victory or battle. I'm not only telling of army, in any other field, man. Imagine the happiness of that ISRO scientist when the Chandrayaan landed on the moon. तो उनके मन में जो पार्टी हुई होगी, that is an ultimate party. They also did not need any drinks or smoke or fag or a music or a DJ to enjoy that moment. If that is the kind of party you're looking forward to, ladies and gentlemen, then gear up, buckle up, man, and fight it hard, and you'll get enough opportunities to party like never you've done it before. If that is the party you are looking forward to, yeah, बहुत opportunities आएंगी, but you'll have to earn it, because कोई intoxicant बाहर से stimulant नहीं मिलेगा, अपने आप में party होगी. So if that is the party you're looking forward, please, life is going to be a party. Brace up for it. And I'll tell you why it is a battle. I'll tell you why it is a battle. Because when I say that देश जो है बाकी सारे देशों को पीछे छोड़ता हुआ आगे निकल जाएगा, it appears कि कोई रेस होगी, नहीं, बाकी सारे देश हैं, भारत है, और भारत उन सबसे आगे निकल जाएगा। तो रेस के मैदान में, एथलेटिक ग्राउंड में आपने देखा होगा क्या होता है, ट्रैक बना होता है, लेन बनी होती है, आप उसमें दौड़ते हो, और उस रेस को दौड़ने के लिए, जीतने के लिए क्या करना पड़ता है? यू नीड टू रन लॉन्ग, यू नीड टू रन हार्ड, यू नीड टू रन फास्ट, एंड इफ यू कैन डू दैट, यू विन द रेस, नोबडी कैन स्टॉप यू, इवन इफ द अदर गाइज आर एनवियस इफ यू, ही कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, राइट? तो आपसे कोई पीछे रह गया है, पाकिस्तान
मान लीजिए वहां पर दौड़ रहा है, आप उससे तेज दौड़ रहे हो, बेचारा क्या ही कर लेगा कोई। आपसे आगे है कोई देश, आज की डेट में चीन है, लेकिन वो देख रहा है कि भारत के लंबे लंबे कदम जिस स्पीड से आ रहा है, भाई इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, इट्स गोइंग टू गो अहेड ऑफ मी। व्हाट कैन ही डू इन अ स्पोर्टिंग फील्ड? नथिंग मैन, ही कैन सिंपली वॉच the someone running that side or that side. Everybody wants कि भाई ये तो सबसे तेज भाग रहा है, but they can't do anything on the track and field ground के ऊपर. But ladies and gentlemen, देवी और सज्जनों, राष्ट्रों के इस खेल में, इस दौड़ में, सभ्यताओं के इस दौड़ में there are no rules. It's a free for all game. अर्थात इस खेल में जो पीछे है वो भी पूरी चाल चल रहा है। यानी कि अगर आप उसको आप खेल के मैदान पे कंपेयर कर दें तो यहाँ पर दाएं वाला, बाएं वाला, आगे वाला, पीछे वाला जो कुछ भी है वो अड़ंगी भी मार सकता है, कॉलर भी पकड़ सकता है, मुक्का भी मार सकता है, चाकू भी मार सकता है, गला भी काट सकता है, गोली भी मार सकता है। एवरी डर्टी ट्रिक दैट वन कैन प्ले इज अलाउड इन दिस गेम। सो इफ यू थिंक कि आप सिर्फ दौड़ेंगे तेज, ईमानदारी से, मेहनत से करेंगे, परिश्रम करेंगे और सबसे आगे निकल जाएंगे, दुनिया तमाशा नहीं देखेगी, आपको ऐसे ही आगे नहीं जाने देगी। इट्स गोइंग टू बी अ ब्लडी हार्ड गेम and there will be blood. I hope I'm not scaring you. I'm simply trying to make you grown up adults, ladies and gentlemen. बच्चों का खेल नहीं होगा ये. It's not going to be easy, right? You're a historic generation. You will have to play a historic role in the destiny of this nation. Are you guys ready? डर तो नहीं लग रहा है? Right? That is what it is. So ये आपको करना पड़ेगा. तो एक तो तरीका ये होगा, और आज के बाद से आप जब भी देश में, दुनिया में जो हो रहा है उसको जब आप सोचे तो आप तुलना कीजिए कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। बिकॉज द गेम इज बिगन, द गेम इज ऑलरेडी बिगन। मैंने कहा आप फाइनल ओवर में उतरेंगे, बट द गेम इज ऑलरेडी बिगन, राइट? सो द पीपल ऑफ माई जनरेशन हु आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, वी विल डू वट एवर वी डू, होपफुली वी प्ले बेटर एंड आपके लिए थोड़ा सा आसान रहे। इवन इफ यू डू नॉट, देन आपके सामने स्टिफ टारगेट आएगा, बट यू विल हैव टू प्ले इट, ठीक? विनिंग चौका आप ही लगाएंगे, ये लास्ट विकेट, दैट इज गोइंग टू बी इन योर हैंड्स। ये आपका सौभाग्य होगा, ठीक है ना? तो आई डू नॉट नो जब वो आएगा 2047 में, मैं या जो सामने बैठे लोग, उस समय हम लोग शायद बूढ़े हो चुके होंगे या शायद यहाँ हो ना हो, बट एक बात की गारंटी दे रहा हूँ मैं अपना आप लोगों को, आई मे बी ओल्ड, आई मे बी फ्रेल, एट दैट टाइम इफ आई एम अलाइव, आई वुड बी सिटिंग समवेयर इन द कॉर्नर ऑफ दिस कंट्री alone. But when you take the flag of this country high above everybody else, I can guarantee you, ladies and gentlemen, I'll get up and clap for you. And even if you're not on this land, wherever we are on top, वहाँ से हम आपके लिए आशीर्वाद भेजेंगे। इस बात की मैं आप लोगों को आश्वासन दे रहा हूँ, right? Hope you can give us that moment of joy, right? Can you give us that moment of joy? Okay, great. So, but एक बात आपको बता दूँ मैं आपको, ये कभी कभी डेवलपमेंट के नाम पे, हम ग्रोथ के नाम पे आ जाते हैं, वो जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, जो जीडीपी होना चाहिए, यूनिकॉर्न होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ होना चाहिए, डिजिटल ट्रांजेक्शन इतना हाई होना चाहिए, ये होना चाहिए, सारा कुछ है ना। ये सारे भी तो बातों पे हम आगे बढ़ने की बात सोचते हैं, क्योंकि यही कुछ आया जाता है, यही मापदंड होते हैं। बट एक बात आप ध्यान में रख लीजिए, एक बात ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि दिस इज यूनिक। बिकॉज हर बार, हर 10, 12, 15 साल में तो कोई ना कोई कंट्री डेवलप्ड इकोनॉमी होती है, हर 30, 40 साल में तो होती है। बट एवरी अदर कंट्री एंड भारत इज गोइंग टू बी डिफरेंट। बाकी सब जगह इट्स ओनली ब्लाइंड मनी and economic growth that they are looking for at the most. Military and economic superpower is all that everybody wants to be, and that is all everybody ends up becoming. But भारत अलग है। भारत दुनिया की एकमात्र मूल सभ्यता जीवंत है जो अपने मूल्यों के साथ आज भी यहाँ पर विद्यमान है। तो जब आप ग्रो करेंगे तो विल नॉट ओनली बी एन इकोनॉमिक पावर, सुपर पावर, नॉट ओनली अ मिलिट्री सुपर पावर, will have to be a moral superpower, and will also will have to be an inspirational superpower. राइट? तो आध्यात्मिक गुरु भी बनना, आध्यात्मिक महाशक्ति और नैतिक महाशक्ति भी आपको बनना होगा, क्योंकि अगर इन दोनों को छोड़ दिया तो फिर कोई फायदा नहीं है। देन विल एंड अप बिकमिंग जस्ट एंड लाइक एनी अदर कंट्री, जो कि सिंपली पूरी बाकी दुनिया का शोषण करता है और प्रकृति का दोहन करता है। तो वी नॉट गोइंग टू बी दैट, राइट? प्लीज गेट इट। ये हमारी, और ये हम ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। इसीलिए बाकी सारे देश जब शक्तिशाली होते हैं तो विश्व शक्ति बनने का सपना देखते हैं, भारत विश्व गुरु बनने का सपना देखता है, क्योंकि ये सामर्थ्य सिर्फ इसी भूमि में है और किसी में है ही नहीं। तो होप यू गेट दैट, ठीक है ना? उसके बाद लेकिन
मैंने कहा ना, एक जो आगे बढ़ने का तो एक तो तरीका है बाहर से जितने आक्रमण होंगे, एक और तरीका मतलब शत्रु के पास एक तरीका है हमें हराने का कि बाहर से आक्रमण करे, एक दूसरा एक और रास्ता है उनके पास। मैं सिपाही हूं ना, तो पहले हम सोचते हैं कि शत्रु क्या क्या कर सकता है, एनालाइज करते हैं हम, देन वी एंटर द फील्ड। तो मैं आपको बता रहा हूं दूसरा एक तरीका है कि भारत जो दौड़ रहा है, तो भारत कौन है? 140 करोड़ लोग, राइट? 140 करोड़ लोग है, तो दूसरा तरीका यह है कि इन 140 करोड़ लोगों को ही भ्रमित कर दो, 140 करोड़ लोगों में ही आपस में बंटवारा कर दो, 140 करोड़ लोगों की प्रायोरिटीज मिसप्लेस कर दो, 140 करोड़ लोगों को कंफ्यूज कर दो, 140 करोड़ लोगों को सेल्फिश बना दो। तो ऐसे लोग जो सेल्फिश हैं, कंफ्यूज्ड हैं, प्रायोरिटीज मिसप्लेस्ड हैं, उनको बाहर से तो वो करते ही रहेंगे, लेकिन ना करे तो 140 करोड़ लोग आपस में ही फंस के गिर जाएंगे, आगे बढ़ने वाले ही नहीं। और ये एक बात बता दूं मैं आपको, पता नहीं आपको इस बात का पहले किसी ने बताया नहीं बताया, इस बात को आप समझे या नहीं समझे, लेकिन इस बात को दुनिया के बहुत सारे बाकी देशों के काफी लोगों ने बहुत पहले से इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी। वो था ना, कंस को बता दिया गया था कि भाई जब पैदा होगा देवी का संतान तुम्हारे अंत का कारण बनेगा, तो तैयारी करनी शुरू कर दी थी उसने कि कैसे मैं उस आगे ही नहीं निकलने दूंगा, पैदा ही नहीं होने दूंगा। तो उसी प्रकार से दुनिया में बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं बाकी देशों में जिन्होंने भविष्यवाणी करी थी, आज से 70, 80, 100 सालों पहले भी देख लेना आप, कई विद्वान थे जिन्होंने भविष्यवाणी करी थी कि भारत एक दिन निकलेगा, सबसे आगे जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो उन्होंने ये भविष्यवाणी समझ तो ली थी उन्होंने, लेकिन वो तब से चाल चलना शुरू कर दिया उन्होंने। उनको तब से पता था कि ये देश किसी दिन निकलेगा, तभी से उन्होंने, जैसे कंस ने शुरू कर दिया था पैदा होने के पहले ही गेम खेलना कि मैं पैदा ही नहीं होने दूंगा तो मारेगा कैसे, तो उन्होंने कहा इस देश को हम अभी से कंफ्यूज करना शुरू कर देते हैं, और हमारी पीढ़ी से शुरू कर दिया था। मेरी आयु के बहुत सारे लोग आपको कंफ्यूज मिल जाएंगे। सो आई एक्चुअली अपोलोजाइज ऑन बिहाफ ऑफ माई जनरेशन, है ना, वी हैव पास्ड ऑन लॉट ऑफ कंफ्यूजन एंड लॉट ऑफ chaos टू यू, बट देन सो बे इट मैन, यू हैव टू क्लियर इट। तो मुझे भी 8-10 साल पहले से धीरे धीरे समझ में आना शुरू हुआ, वरना मैं भी वही सारी चीजें मानता था जो दुनिया बता रही थी। उसी में से कुछ बातें, बहुत सारी बातें हैं, कुछ बातें हैं जो बाकी इतना समय बचा है मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, जस्ट दैट यू गेट ऑन द राइट ट्रैक ऑफ माइंड। बाकी आप खुद ढूंढ लेना है, आगे कभी मुलाकात हुई मेरी फिर से तो हम आगे बात करेंगे। और कीप फॉलोइंग मी फ्रॉम वेयरएवर आई स्पीक, मे बी आई विल कीप स्पीकिंग मोर अबाउट इट, राइट? बट आज जितना हो सकता है मैं उसमें बताता हूँ। तो मैंने कहा ना, कंफ्यूज कर दो, स्वार्थी कर दो, और आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा ना कि आज तक सब लोग बता रहे हैं, मेकिंग यू फील दैट यू नीड टू थिंक ओनली अबाउट योरसेल्फ। लॉट ऑफ पीपल आर टेलिंग यू दैट द नैरेटिव व्हिच इज सोल्ड टू यू। सो नाउ यू प्रॉब्ली अंडरस्टैंड कि यार इससे तो गलत हो जाएगा। कैन यू विन एनीबडी हु प्लेज अ टीम स्पोर्ट? नहीं खेलते भी हो तो आप देखते तो हो गए। कैन यू विन अ टीम स्पोर्ट इफ एवरीबडी थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ ओनली? सो हाउ डू यू थिंक दैट आवर नेशन कैन विन इफ एवरीबडी थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ, राइट? सेम एनालॉजी में बता रहा हूं मैं। सो मैं ये बता रहा हूं कुछ फैक्टर्स क्या है। एक है नैरेटिव, बहुत सारे नैरेटिव है गलत, और वो इतने बड़े बड़े एस्टैब्लिश्ड लोग डाल रहे हैं, इतने बड़े बड़े मतलब नामी गरामी संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशंस, पीपल्स एंड पुस्तकें बड़ी पॉपुलर हैं वो, और उनमें है ये, और इस पे बहस चल रही है। बड़े बड़े प्लेटफॉर्म, प्राइम टाइम रेप्यूटेड मीडिया चैनल्स पे बड़े बड़े एंकर स्थापित वो लोग और बड़े बड़े विद्वान लोग आके इस पर इसी नैरेटिव में फंसे रहते हैं। एक नैरेटिव है दी वर्सेस नैरेटिव। वर्सेस मतलब क्या है? वर्सेस बीच में रखो, इधर एक टॉपिक इधर एक टॉपिक। वो बॉक्सिंग में होता है ना, रेफरी रेड ब्लू फाइट, तो वो रेड एंड ब्लू चेंज करते रहेंगे, इधर से एक लाएंगे इधर से लाएंगे, बोलेंगे फाइट। सो वो जैसे मेन वुमेन फाइट, बहस चल रही है, फेमिनिज्म है ना, बहस चल रही नहीं चल रही है, राइट? तो वो लगे रहो, आप लगे रहो इसमें, दिन रात लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो। बोलेंगे यार शायद इस टॉपिक से बोर हो रहे हैं, तो अभी क्या करें? ओके, साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया फाइट, फिर आप उसमें लगे रहो लगे रहो लगे रहो, लेख लिखते रहेंगे बड़े बड़े। अभी क्या करें? ओके, दिस लैंग्वेज फाइट, दिस गॉड फाइट, दिस फेथ फाइट, दिस कास्ट फाइट, ईस्ट इंडिया रेस्ट ऑफ इंडिया फाइट, फौजी सिविलियन फाइट, इंजीनियर डॉक्टर फाइट, ये वो फाइट, दिस दैट फाइट, दिस दैट फाइट, दिस दैट फाइट। आप उस फाइट को बजाते रहोगे, आप उस टॉपिक पे लिखते रहोगे, आर्टिकल लिखते रहोगे, लेख लिखते रहोगे, स्पीच देते रहोगे, डिबेट में हिस्सा करते रहोगे। आपको लगेगा आई एम गोइंग टू रिजॉल्व इट, बट दैट इज ऑल दे वांट मैन, दे सिंपली वांट यू टू कीप फाइटिंग। डोंट फॉल फॉर दिस ट्रैप। प्रकृति में कोई भी चीज आपस के अंतर विरोध में नहीं है। एक आपको गाइडिंग प्रिंसिपल देके जा रहा हूं मैं।
जब भी आपको कंफ्यूजन हो, थिंक हाउ द नेचर बिहेव्स। तो प्रकृति में ऐसा कोई अंतर विरोध है क्या? पेड़ों में ऐसा कोई बहस है क्या? फल और फ्रूट, ओए तू जरूरी मैं जरूरी, तू वहां मैं यहां, जड़ और तना, ओए मैं मिट्टी के अंदर मैं देता हूं, अरे मैं तो सपोर्ट करता हूं। कहीं होता है क्या ऐसा? कहीं कुछ नहीं होता है। ये हमारे अंदर डाला गया है। बट एट द सेम टाइम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम ऑल्सो नॉट टेलिंग कि दो वर्गों में ऐसा नहीं है कि अन्याय नहीं किया गया। आई एम नॉट टेलिंग दैट। इसमें से कुछ चीजें सही भी हैं, देयर हैज बीन रॉन्ग इज बीइंग डन। इतना लंबा इतिहास है मनुष्य का, और इस पूरे धरती पर जितने जीव हैं उसमें सबसे मूर्ख प्राणी मनुष्य ही है, राइट? तो इतना बड़ा मूर्ख प्राणी जो मनुष्य है, तो कुछ ना कुछ तो बेवकूफियां की होंगी, किसी एक वर्ग ने दूसरे वर्ग पे अन्याय किया होगा। बाय ऑल मीन्स आई एम नॉट टेलिंग दैट सपोज वी पिक अप द मेन एंड वुमेन वाला, तो ऐसा नहीं है कि कभी भी किसी पुरुष वर्ग ने किसी नारी जाति पर अन्याय नहीं किया। इट इज देयर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डोंट फॉल फॉर इट, वो है। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि उस डिवीजन को, उस अन्याय को इग्नोर करो। नो 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 नो, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, आई विल कम टू दैट लेटर। बट द पॉइंट इज, हाउ डू यू अंडरस्टैंड कि ये जो बीच में हमारे को इस डिफरेंस को, जो बात पे जो हमको ला रहा है, इसकी नीयत क्या है, ये कैसे आपको पता चलेगा? वेदर ऑनेस्टली इस अन्याय को रिजॉल्व करना चाह रहा है या इसका फायदा लेके मतभेद पैदा करना चाह रहा है, ये कैसे आपको पता चलेगा? इसका आपको सिंपल से एग्जांपल है। आप अपने घर जाते हैं या किसी रिलेटिव के घर में जाते हैं और आप देखते हैं वहां पर कि एक कमरे के अंदर दो बच्चे हैं और आवाज आती है अंदर से मार पिटाई की, और आप जाके देखते हैं कि एक बच्चा दूसरे को मार रहा है, राइट? तो आप जैसे ही जाएंगे तो आप किससे डील करेंगे? सबसे पहले जो मार रहा है उससे डील करेंगे, या जो मार खा रहा है उससे डील करेंगे? जो मार रहा है उसी को डील करेंगे ना, कि भाई क्यों मार रहा है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। अब उसके बाद द वे यू डील इट, आई लीव इट अप टू यू। प्रेम से समझाओगे, नहीं समझोगे तो शायद आप भी सख्त हो जाओ, आप भी झापड़ लगो, आई लीव इट अप टू यू, वो दैट्स अ डिफरेंट इशू। द पॉइंट इज यू गोइंग टू डील विद द पर्सन जो अन्याय कर रहा है, राइट? फर्स्ट, अगर नहीं सॉर्ट आउट हो पाता है, बिल्कुल आपकी सारी जितनी भी प्रयास है, हर प्रयास विफल हो जाता है, तब आप उस पर जाओगे जो अन्याय जिसके साथ हो रहा है कि तू भी अब खड़ा हो जा, राइट? बट द फर्स्ट अटेम्प्ट एंड फुल अटेम्प्ट, जब एग्जॉस्ट हो जाएगा वो मामला कि अब कुछ नहीं हो सकता, तभी आप दूसरे पे जाओगे, वरना आप हमेशा डील करोगे जो अन्याय कर रहा है। लेकिन आपका एक पड़ोसी है, वो आपके परिवार से ईर्ष्या करता है, वो चाहता है कि इस परिवार में मैं दरार डालूं, इस परिवार में कोई मुझे फॉल्ट लाइन मिले और उसमें का फायदा उठा लूं। वो क्या करेगा? वो बच्चा जो मार खा रहा है ना, वो उसको नीचे कहीं मिल जाएगा, वो उससे डील करेगा। हाँ तेरे को मारा, हाँ सुनना नहीं, ये चाकू ले ले, घोंप देना, कल मारा तो घोंप देना उसको। वो तो फायदा मिल गया ना उसको, ये मुझे एक फॉल्ट लाइन मिला इसमें। वो डील उससे करेगा जिसके साथ अन्याय हो रहा है। कोई भी व्यक्ति किसी फॉल्ट लाइन में जहां पर भी मतविरोध है, अन्याय एक वर्ग दूसरे पर कर रहा है, वो सीधा डायरेक्टली अन्याय होने वाले को अगर डील करना शुरू कर दो, हो सकता है कि आप वो वर्ग हो जिसके साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन आपके पास आकर कोई अगर बात कर रहा है, आप समझ लेना ये धूर्त है, ये फायदा उठाना चाह रहा है इस फॉल्ट लाइन का, ये इसको मामले को निपटाना नहीं चाह रहा है, बढ़ाना चाह रहा है परमानेंटली। अदरवाइज हाउ डू यू थिंक मैन एंड वुमेन कैन दे बी ऑपोजिट? अंतर विरोध है क्या? प्रकृति में हम एक दूसरे के पूरक है ना। मैन एंड वुमेन केम टुगेदर, दैट्स व्हाई यू केम हियर ना। सो वी आर नॉट इन कॉन्फ्रंटेशन विद ईच अदर, राइट? तो इसका एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। एक्चुअल महाराष्ट्र में एक संत थे, उनका नाम था आचार्य विनोबा भावे। उन्होंने देखा कि यार भारत जब आजाद हुआ कि बहुत सारे लोग जमींदार हैं, उनके पास बहुत पैसा, बहुत जमीन है, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास एक रत्ती भर जमीन नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, वो गए और उन्होंने जमींदारों को मनाना शुरू किया कि यार आपके पास इतना है, उसके पास कुछ नहीं है, थोड़ी भूमि का आप उसको दे दो। तो वो जो आंदोलन चला रहे थे उसको भूदान आंदोलन कहा गया, राइट? तो व्हाट ही वाज ट्राइंग टू डू, ही वाज ट्राइंग टू डील विद द पर्सन जो अन्याय कर रहा है, राइट? गुड इंटेंशन। लेकिन फिर आ गए लोग, बोले यार ऐसे तो ये सारा मामला सपटा देगा, ये तो प्रेम से हो जाएगा सारा कुछ, हाईजैक कर लो इस मूवमेंट को। तो ही वॉज हाईजैक्ड, ही वॉज अ सिंपल गाय, ही कुड नॉट अंडरस्टैंड द पॉलिटिक्स एंड द स्कीम ऑफ द पावर्स दैट मे बी, सो दैट एंटायर थिंग वॉज हाईजैक्ड। एंड उसके बाद ये जिन्होंने हाईजैक कर लिया इस मूवमेंट को, उन्होंने क्या करा, वो गरीब के पास गए, बंदूक पकड़, हथियार उठा, छीन के लेना इन अमीरजादों से, जमींदारों से सारा कुछ, अपना अधिकार। यू गेटिंग ए पॉइंट?
और उस जमींदार को, उस गरीब आदमी को लगने लगा ये मेरा हितैषी है, बंदूक भी दे रहा है, लड़ना भी सिखा रहा है. अंडरस्टैंड द डिफरेंस. Anybody who is trying to take advantage of this versus debate, please don't fall for it. ये सिर्फ बांटने की बारी है, ठीक है ना? That is one. Please understand. किंतु इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं मैं, लड़ना कहीं नहीं है, लेकिन किंतु मैं उस पर आऊंगा इसके बाद. धर्म और अधर्म के युद्ध में छोड़ना नहीं है, वहां पक्का लड़ना है. वो बहाना मत मानना है. वो कंसीना साहब आए थे, बोला लड़ना ही नहीं है. तो मैंने देखा वहां पर एक पुरुष जो था किसी महिला के साथ अभद्रता कर रहा था, लेकिन कंसीना साहब की बात आती है कि लड़ना ही नहीं है, तो मैं तो चलाया. राइट, मैं चलाया. अधर्म जहां भी होता है वहां पर अब उल्टा हो रहा है, बिना मतलब के हम लड़े जा रहे हैं जहां नहीं लड़ाई है, और जहां अधर्म हो रहा है छोड़ना यार, अपने को क्या लेना देना, पंगे यार, ये किसमें पढ़ना यार, चलो ना सट लो, वहां से हट रहे हैं. जहां लड़ना चाहिए वहां नहीं लड़ रहे, और जहां नहीं लड़ना बिना बात के लड़ रहे हैं. क्योंकि दोनों गलत है ना. अगर अधर्म है तो भगवान कृष्ण ने क्या करा, पूरा प्रयास किया दुर्योधन को समझाने की. ही डेल्ट विद द मैन हु वाज डूइंग रॉन्ग. जब नहीं है, पूरा प्रयास समझा लिया, कुछ कर लिया, सब कुछ कर लिया, नहीं हो रहा है, उसके बाद ही टोल्ड शस्त्र उठा प्रहार कर, तू सबसे पहले वार कर, आज तू चिंगाड़ कर और तू प्रहार कर, शस्त्र उठा प्रहार कर. उसके बाद तो अर्जुन खुद लड़ने को तैयार नहीं था, बोला मैंने छोड़ो ना, मैं साधु व्यक्ति हूं, क्या फायदा लड़ाई का, सामने पितामह हैं, गुरुजी हैं, भाई हैं. बोला कुछ नहीं है. बोला मैं साधु बन जाऊंगा, तपस्या करूंगा. बोला कुछ नहीं करना है, पहले शस्त्र उठा प्रहार कर, मार पहले. अधर्म है तो लड़ाई से पीछे नहीं हटना है. प्लीज गेट दैट स्ट्रेट, दैट इज वन पार्ट. लेकिन बाकी कोई हमारे बीच के फॉल्ट लाइन का फायदा उठाकर अंतर विरोध डालने का प्रयास कर रहा है, डोंट बाइट दैट बुलेट. आई होप आई एम क्लियर. राइट, इन हरी बहुत सारे पॉइंट करने के चक्कर, कवर करने के चक्कर में मैं नहीं छोड़ना चाहता कि कोई पॉइंट आपका क्लियर ना हो. ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गई ना, कंफ्यूजन तो नहीं है ना इस पे. तो बिना मतलब अंतर विरोध नहीं लेना, लेकिन अधर्म है तो वो है. लेकिन धर्म क्या है फिर? मैंने कहा ना, फिर धर्म क्या है? एक भ्रम ये भी पैदा किया जा रहा है, धर्म, क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाई तो धर्म पे हो रही है. तो इट्स वेरी बता देते हैं कई जगह सेंसिटिव टॉपिक एंड ऑल, बट देन अब मैं जब आपको लड़ाई के लिए भेजना हो तो फिर when you're going to get into battle, so might as well clear all illusions, man. I'm a soldier, no? I'm a soldier. When we are about to get into the battle, we cannot leave any topic unaddressed, right? We got to talk about everything. We cannot walk into a battle with any kind of illusion, right? Because the result will be either we'll come back in body bags or we'll lose a part of our limbs, right? तो धर्म के नाम पे भी बहुत कंफ्यूजन है, और क्योंकि इसको भी प्रयोग किया जा रहा है लड़ाने के लिए लोगों को, तो प्लीज गेट दैट स्ट्रेट. व्हाट इज धर्म? धर्म का मतलब सिंपली ब्रह्मांड का नियम है. इट इज द कॉस्मिक लॉ, द वे द लॉ फंक्शंस, द लॉ बेस्ड ऑन विच द एंटायर यूनिवर्स हैज बीन मेड. इट केम इनटू एग्जिस्टेंस बेस्ड ऑन ए कॉस्मिक लॉ. नो व्हाट आवर एंसेस्टर्स डिड इज, और उसके बाद जब पृथ्वी बन गई, ब्रह्मांड बन गया, तो उसमें प्रत्येक प्रत्येक कण में, हर एक अणु में वो धर्म व्याप्त है. इट्स ऑलरेडी देयर, वी आर नॉट क्रिएटिंग इट. So what our ancestors in this land did is they went and tried to understand that. You're students of science, right? So what are you trying to do is, how does it function? Right? तो ये इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, इट्स अ साइंस. तो आप उसको जानने का प्रयास करते हो. अगर कल कोई इसरो का साइंटिस्ट होगा, कोई नया ग्रह देखेगा, तो विल ट्राई एंड फाइंड आउट कि इस ग्रह की प्रॉपर्टीज क्या है, इसमें गैस कितना है, इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है. इट्स नॉट गोइंग टू इमेजिन, जो है उसी को समझने का प्रयास करेगा ना, नया थोड़े क्रिएट करेगा. सिमिलरली देयर इज अ लॉ इन एवरीथिंग. इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ साइंस, स्टूडेंट्स ऑफ इवन मेडिकल, तो देयर इज अ लॉ ऑन बेस्ड ऑन विच दिस बॉडी फंक्शंस. सिंपली दी मेडिकल साइंटिस्ट जितने हैं वो इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं. सो आवर एंसेस्टर्स ट्राइड, जो गए, संत बने, महात्मा बने, ऋषि बने, उन्होंने करा, शरीर को अपने पूरा साधा, शरीर के सारे विकार निकाले. मोमेंट ऑल यू गेट रेड ऑफ ऑल द विकार, तो उसके बाद क्या होता है, पूरा शरीर जो है ब्रह्मांड के साथ सिंक्रोनाइज हो जाता है. वंस यू गेट सिंक्रोनाइज, तो सारा का सारा ज्ञान समझ में आने लग जाता है. राइट, कनेक्शन बनते ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज, कनेक्शन बना, एंड वंस दे अंडरस्टूड दैट, दे केम बैक एंड told the mankind कि based on that law which is already existing, this is how you need to function. Suppose you will make an equipment after 4 years or 5 years of hard work. अब उसके बाद वो equipment जब मुझे दोगे, तो मेरे को 4 साल का पूरा तो समझा नहीं पाओगे. But you understand the laws on which the equipment is made, so you will give me a manual, simple. कि सर ये manual ले लो, आप इसके हिसाब से चलाओ, this equipment will work for you. Right? That is how it happens.
तो उसी प्रकार से उन्होंने कहा, आप सारा तो मैं नहीं तुम बता सकता, बट दिस इज हाउ यू शुड फंक्शन. सो दे मेड लॉज फॉर मैनकाइंड टू अंडरस्टैंड एंड वर्क, एंड देन दे स्टार्टेड ब्रेकिंग डाउन इन वेरियस सेगमेंट्स. तो हर एक चीज का एक उन्होंने लॉ बताते चले गए. तो दिस इज अ नाउन. सो धर्म एक तरीके से देखें तो संज्ञा है, नाउन है. व्हेन यू आर अंडरस्टैंडिंग द लॉ इज अ नाउन. दूसरा है धर्म इज ऑल्सो क्या बोलते हैं, इज ऑल्सो ए विशेषण, एडजेक्टिव. सो आइस इज सपोज टू बी कोल्ड. बर्फ का धर्म है शीतल रहना. सो वो एडजेक्टिव हो गया. अगर वो अपने धर्म से विमुख होती है तो बर्फ ही नहीं बचेगी ना, यानी कि वो पिघल चुकी है. जिस दिन वो बर्फ शीतल नहीं है, यानी कि इट सीजेस टू एग्जिस्ट लाइक एन आइस. सो दैट इज एन एडजेक्टिव, राइट. अब दूसरा हो गया कि वो जो नियम के हिसाब से जो बनाया है, उस लॉ के हिसाब से काम करना, देन धर्म इज ए वर्ब. तो बोलते हैं ना धर्म कर, धर्म के अनुसार चल, तो देन इट बिकम्स ए वर्ब. सो धर्म इज ओनली दीज थ्री थिंग्स. इन वन फॉर्म इट इज नाउन, अनदर इट इज एडजेक्टिव, एंड द थर्ड इट्स अ वर्ब. सो उसके बाद उन्होंने बोला, राजा तुम्हारा धर्म ये है, मंत्री तुम्हारा धर्म ये है, विद्यार्थी धर्म अलग है, शिक्षक धर्म अलग है, सैनिक धर्म अलग है, पुत्र धर्म अलग है, पुत्री धर्म अलग है, माता धर्म अलग है, पिता धर्म अलग है, सिपाही पुलिस वाले का धर्म अलग है. जीवन के हर एक क्षेत्र में, चाहे आपके काम का क्षेत्र हो, स्टूडेंट का क्षेत्र हो, पारिवारिक क्षेत्र हो, व्यक्तिगत क्षेत्र हो, आपका एक धर्म है जो कि उस नाउन और इस एडजेक्टिव के ऊपर बेस्ड है. एज सिंपल एज दैट. देयर इज नथिंग मोर, नथिंग लेस. Anybody telling anything beyond this is not dharma. It could be anything, but not dharma. Don't get confused on this. Got the point? Don't get confused on this. That is what it is. यही धर्म है. Approach अलग अलग हो सकता है how to deal with this body, right? How to deal with the law. That approach can happen very differently. For example, suppose you are a medical somebody studying medicine. तो medicine में क्या होगा? Moment you go into a medical college, they will issue you a book. सो हम क्या बोलते हैं, व्हाट इज दिस? बोला इसके अंदर साइंस है, ह्यूमन बॉडी की साइंस है. नो, द साइंस इज नॉट इन द बुक, द साइंस इज हियर इन द बॉडी. द बुक इज सपोज टू बी हैविंग द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द साइंस विच इज एग्जिस्टिंग इन दिस बॉडी. अंडरस्टूड दैट पॉइंट? द बुक इज नॉट द फाइनल थिंग, द फाइनल थिंग इज हियर, द रियल थिंग इज हियर. तो इसको आप देखोगे भी, विज्ञान की आप छात्रों देखना, आप एक थ्योरी किसी साइंटिस्ट ने दी है, 4 साल बाद कोई और साइंटिस्ट उसको काउंटर करता है, बिकॉज ही फाइंड्स इट एंड ही गिव्स लॉजिक. एंड ऑल द साइंटिस्ट ऑफ राइट थिंकिंग, वेल इंटेंशन मैन, तो पुराना वाला साइंटिस्ट मान भी लेता है, अच्छा हाँ ये फैक्टर तो मुझे छूट गया था, गुड. बिकॉज अगर सही लोग, सही नियत है कि मानव कल्याण ही नियत है, तो देन यू इजीली एक्सेप्ट व्हेन ए लॉजिक इज गिवन. बट जब इंटेंशन कुछ और है तो फिर जिद हो जाती है. आई विल नॉट एक्सेप्ट, हाउ डेयर यू क्वेश्चन माई बुक मैन, मैंने लिख दिया वो फाइनल होगा, राइट? तो दैट इज व्हाट इट इज. तो ये आप समझ लो कि इस पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. अब इस हिसाब से मैं बोल रहा था इसके पहले वाले पॉइंट पे कि आप बिना मतलब के कभी मत लड़ना, लेकिन धर्म के विरुद्ध कहीं कोई काम हो रहा है तो आपको खड़ा होना ही है, ये आपका कर्तव्य है. प्लीज गेट दैट वेरी स्ट्रेट, ठीक है ना? क्योंकि आप मनुष्य हो ना, एक ही काम है मनुष्य का जो जानवरों से अलग है. जानवरों के जितने काम है वो सारे हमारे काम है, उसमें एक ही एडिशन होता है और कुछ नहीं. जानवर सारे क्या करते हैं? वो सारे के सारे भोजन की तलाश करते हैं. जंगल में जाओगे तो भोजन की तलाश कर रहा है, प्रजनन का प्रयास कर रहा है, राइट? और तीसरा, उसको अगर अपने अस्तित्व पे, अपने सर्वाइवल पे खतरा मिले तो वो एक्ट करता है, इधर इट फाइट्स और इट फ्लीज. दैट्स ऑल इट डज. और चौथा, जो कुछ जीव करते हैं कुछ नहीं करते हैं, वो अपने लिए आसरा बनाते हैं. चिड़िया अपने लिए घोंसला बनाती है, चूहा अपने लिए बिल बनाता है, बाकी कुछ नहीं बनाते. बट ये 4 काम करते थे, हम भी करते थे जब जंगलों में रहते होंगे, हम आदि मानव के रूप में जंगलों में घूमते, तो हम भी तो यही 4 काम कर रहे होंगे. तो उसके बाद जब बाकी जानवर ही थे, मतलब बाकी जीवों की तरह ही थे. व्हेन आई से जानवर, आई एम नॉट यूजिंग इट इन द टर्म ऑफ डेरोगेटरी. आई रिस्पेक्ट अ लॉट ऑफ एनिमल्स. आई फील दे आर फार मोर सेंसिबल देन अस, राइट? तो वैसे ही थे. तो हुआ क्या कि थोड़ी चेतना जागी, थोड़ा बुद्धि विकास हुआ, तो हमें लगा कि यार वी माइट एज वेल कम टुगेदर एज सोसाइटी. वरना हम भी पहले इंडिपेंडेंट ही थे ना, अकेले अकेले रहते थे. तो लगा यार सोसाइटी के रूप में रहते हैं तो आई थिंक इट्स अ बेटर वे ऑफ लिविंग. सो दैट्स हाउ वी केम टुगेदर. नाउ जानवरों के पास, मैं क्यों बोल रहा हूं ये चौथा वाला काम, क्योंकि जानवरों के पास ब्रह्मांड के नियम का उल्लंघन करने की शक्ति ही नहीं है, कि उनके पास विवेचना करने की शक्ति नहीं है. तो जो उसमें प्रोग्राम कर दी, ब्रह्मांड ने जो प्रोग्रामिंग कर दी है उसमें, जो उसकी, वो उसके बाहर जा नहीं सकता. इट कैन नॉट.
सो आप देखो कोई जानवर पोल्यूशन करता है क्या पृथ्वी पे? नहीं करता ना। कोई ऐसा काम नहीं करता जो ब्रह्मांड के नियम के खिलाफ है। कोई भी जीव, कोई चिड़िया, कोई पक्षी, कोई जीव कुछ भी नहीं करता, नथिंग। कोई चिड़िया बोलती है कि यार आई वांट टू गेट अप एट 12 टुमारो, आई हैव हैड ए लेट नाइट पार्टी मैन, बोलती है? नहीं ना, सामर्थ्य नहीं दिया भगवान ने सोचने को उसको। इट हैज टू कीप फॉलोइंग द लॉ मोमेंट, एवरी वेकिंग मोमेंट। कोई चिड़िया सोचती है आई वांट टू हैव पिज्जा टुडे। अच्छा, मैं उन जीवों की बात नहीं कर रहा हूं जो मनुष्य के संगत में रह रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ पेट्स, प्लीज। वो हमारे साथ लगे बिगड़ गए वो भी, राइट? जो मनुष्य से जिसका कभी संपर्क में नहीं हुआ है, जो जीव जंगल में है या समुद्र के नीचे जितने भी जीव हैं, उसमें से कोई होता है, वो एक कण कोई ऐसा जीव नहीं खाता है जो उसके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। वो पागलपन सिर्फ हमारा है, हमें सोचने का दे दिया ना। तो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। धर्म के दायरे के बाहर जाने का सामर्थ्य सिर्फ हम ही में है, बाकी कोई जीव जाता नहीं। तो इसीलिए उनका ये चौथा काम एंगल आता नहीं, क्योंकि कोई जीव जब धर्म के बाहर काम करता नहीं तो अधर्म होता नहीं, अधर्म होता नहीं तो अधर्म से लड़ने का कोई सवाल उनका है नहीं। तो उनके यही 3 या 4 ड्यूटी होती है, पूरी जीवन यही करते हैं वो। मनुष्य बनने के बाद, मैं ये नहीं कह रहा हूं नेगेटिव सेंस में, इसी धर्म की विवेचना करके हमारे पास सामर्थ्य है कि हम इसी पावर को यूज करके बहुत ऊपर जा सकते हैं। सो देयर आर ग्रेट्स, जो बुद्धा बन जाते हैं, नानक बन जाते हैं, तो वो धर्म के दायरे में रह के ही बहुत ऊपर, हाईएस्ट लेवल ऑफ एनलाइटमेंट तक वो जा सकते हैं, वो जो कि बाकी जीव नहीं जा सकते। लेकिन उसी बुद्धि का प्रयोग करके धर्म के दायरे के बाहर भी जा सकते हैं। धर्म के बाहर दायरे के बाहर जाएगा तो वो अधर्म करेगा, एंड दैट बिकम्स द 4th ड्यूटी ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, एवरी राइट थिंकिंग ह्यूमन बीइंग, दैट व्हेनेवर देयर इज अधर्म हैपनिंग यू नीड टू फाइट, गेट। अदरवाइज बाकी 4 तो हम भी कर रहे हैं। कौन सा हमने नया काम कर लिया यार एज ह्यूमन बीइंग? भाई खाना तो अभी भी खा रहे हैं ना, वो ठीक है, हम अपने अपने दिमाग से नए नए व्यंजन खा रहे हैं, बट खा तो रहे हैं। वी आर डूइंग व्हाट एवरी अदर लिविंग बीइंग इज डूइंग, राइट? प्रजनन हम भी कर रहे हैं। पहले ठीक है हम लोग गुफा में रहते होंगे, अब ऐसा बना लिया, बट है तो आसरा ही ना ये, ऑल सेड एंड डन। व्हाट ग्रेट, व्हाट डिफरेंट? सो द ओनली डिफरेंस दैट मेक्स अस ह्यूमंस इज आवर एबिलिटी टू फाइट अधर्म। इफ यू नॉट डूइंग दैट देन यू एज मे वेल गो बैक टू जंगल्स, ठीक है ना? सो एज आई टोल्ड यू, आई एम reiterating, you should not take conflict unnecessarily which is not required, but when there is an adharma, you bloody well get up and fight, right? Whichever way you do it, I'm not telling fight that man, fight that adharma, right? There was a man called Ratnakar, वो डाकू था, तो नारद मुनि मिले, उसको रिफॉर्म किया, और वो क्या बन गए? वाल्मीकि ऋषि। तो उन्होंने सिर्फ अधर्म से डील किया, right? Similarly, there was a lady who was a paramour and kind of a prostitute. Her name was Amrapali. तो she came in contact with Buddha. She became भिक्षुणी. तो उन्होंने क्या किया? सिर्फ अधर्म और पाप को खत्म किया। बट यदि नहीं खत्म हो रहा है, दुर्योधन है वो, रावण है वो, कितना भी समझा लो नहीं निकल रहा है, तो अधर्म नहीं बचना चाहिए, व्यक्ति के समेत उसका नाश होना चाहिए। ठीक है ना? दैट इज वन। फिर आता है एक और, आजकल एक और बात सिखाई जा रही है, यू मस्ट ऑल बी अवेयर ऑफ योर राइट्स। आपको अपने अधिकार का बोध होना चाहिए, राइट? बोला गया, बता रहे ना, अधिकार का बोध होना चाहिए। अब एक और मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, फिर आप खुद बताना। मान लो आप एक हाउसिंग सोसाइटी में रहते हो, उस हाउसिंग सोसाइटी में लोग रहते हैं, उसमें से कोई पुलिस में रहता है जो लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मेदार है, उसमें से कोई म्यूनिसिपैलिटी में वहां काम करता है जो साफ सफाई का जिम्मेदार है। इंदौर के रहने वाले हो आप लोग, देश का सबसे साफ शहर, राइट? तो कोई उसमें काम करता है जो कि साफ सफाई का जिम्मेदारी है। उसमें से कोई पानी के विभाग में काम करता है, जहां से पानी वगैरह का होता है। उसमें से कोई बिजली विभाग में काम करता है। अब उस सोसाइटी के अंदर हर चीज खराब है। उस सोसाइटी के अंदर कभी पानी नहीं आ रहा, कभी बिजली नहीं आ रही, गंदगी पड़ी है, चोरी हो जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर खराब है, सब कुछ गलत है। अब इसको टैकल करने के 2 तरीके हैं। एक समाज जो है वो अपने अधिकार के बोध से प्रेरित है। तो जिस दिन बिजली नहीं आई, सबको याद आ जाता है कि ये बिजली हमारा अधिकार है, तो बाकी सारे लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं और बोलते हैं चलो हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। और बिजली विभाग के ऑफिस, वही उसी सोसाइटी में रहता है वो बंदा, उसी के दफ्तर जाएंगे, धरना देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, व्हाटएवर यू डू, तोड़फोड़ करे, धरना करे, या जो करे, जो भी करे, कि हम अपना अधिकार लेके रहेंगे, 24 घंटे बिजली हमारा अधिकार है। फिर जिस दिन सफाई नहीं देखी, आज पूरा मोहल्ला गंदा है,
पूरी सोसाइटी गंदगी है। आज सफाई वाले के दफ्तर के आगे चलेंगे, सफाई स्वच्छ हमारा अधिकार है और हम लेके रहेंगे, लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे। फिर किसी दिन पानी वाले के यहाँ चले गए, आज पानी नहीं आ रहा, ये क्या मतलब है? हमारा अधिकार है, हम पानी लेके रहेंगे लेके रहेंगे लेके रहेंगे। चोरी हो गई तो पुलिस वाले के चले गए, ये क्या मतलब है? आए दिन चोरी हो रही है, हमारा अधिकार है, लॉ एंड ऑर्डर सुशासन होना चाहिए, हम अपना अधिकार लेके रहेंगे लेके रहेंगे लेके रहेंगे। एक पूरा समाज जो अपने अधिकार बोध से पूरी तरह से प्रेरित है, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है, ये पूरा समाज अपने कर्तव्य के बोध से प्रेरित है। तो जैसे ही बिजली नहीं आती है, बिजली विभाग का व्यक्ति जो कर्तव्य बोध से प्रेरित है वो तुरंत जाता है, परिश्रम करता है, उसको ठीक करता है। पानी विभाग वाला भी अपने कर्तव्य बोध से प्रेरित है, उसको अपने कर्तव्य का बोध है, वो तुरंत जाता है, उसको ठीक करता है। कचरा रह गया, तुरंत वो जाता है, फोन करता है, खुद दौड़ता है, जो करता है उसको साफ करवाता है। चोरी हो गई, पुलिस वाला दिन रात अथक परिश्रम करता है, सारे चोरों को पकड़कर अंदर डाल देता है। कौन सा समाज सही है? कर्तव्य के बोध से प्रेरित समाज या अधिकार के बोध से प्रेरित समाज? कौन सिखा रहा है आपको कि सिर्फ अधिकारों की बात करो? आप देख रहे हो ना, नैरेटिव में बोला गलत पढ़ाया गया पिछले 70 सालों में सब कुछ, ठीक है ना? इस देश में अधिकार शब्द का प्रयोग वो व्यक्ति करता ही नहीं था जिसको मिलना है। अधिकार शब्द जो गढ़ा गया हमारे देश के संस्कृति में, वो प्रयोग करता था जिसने देना है। तो मान लो घर में कोई बच्चे एक आया और बड़े बुजुर्ग, उसने आके बड़े बुजुर्ग के पांव छुए, उसने उठा के उसको, मान लो जैसे बहू आई, बहू ने आके पांव छुए, नई नवेली बहू है, पांव छुए, तो घर के किसी बुजुर्ग ने कुछ उसको मान लो उपहार दिया, तो वो बोलेगी पिताजी ये क्या जरूरत है इसकी? बोला नहीं बेटा, ये तेरा अधिकार है। आप समझ गए? वो प्रयोग कर रहा है अधिकार शब्द जिसने देना है, लेने वाला नहीं करता है। वो समाज जिसमें सिर्फ वो अधिकार शब्द का प्रयोग करे जिसने देना है, लेने वाला बात ही ना करे, और जो बाकी सारे लोग अपने कर्तव्य के बोध से प्रेरित हों, तो वो कितना सुखी और शांत समाज होगा, सुसंस्कृत समाज होगा। कल्पना कर सकते हैं आप? लेकिन वो समाज जिसमें सिर्फ हर व्यक्ति अपना अधिकार मिलेंगे कहां से? सब अधिकारी करेंगे तो कर्तव्य पूरा करेगा कौन भाई? अधिकार भी तो मिलेंगे, जब कोई कर्तव्य करेगा तभी तो आपके अधिकार मिलेंगे। तो अल्टीमेटली बॉटम लाइन तो वो है कि कर्तव्य कोई करेगा तभी आपका अधिकार। तो व्हाई नॉट मेक ए सोसाइटी विच इज कॉन्शियस ऑफ इट्स ड्यूटीज रादर देन राइट्स? अंडरस्टूड? ये आप समझ लीजिए। तो आज से सारा नैरेटिव आप अपने कर्तव्य बोध पर रखिए कि मैं जहां जाऊं अपना कर्तव्य पूरा करूं, और उससे एक स्वस्थ समाज होगा, समाज मजबूत होगा। और एक और बात बताऊं, इसी कारण से परिवार भी टूटते हैं, जहां सिर्फ हर व्यक्ति अपने अधिकार की बात करता है। परिवार में हर व्यक्ति सिर्फ कर्तव्य की बात करे कि मैं पति हूं, मेरा कर्तव्य है, मैं पत्नी हूं, मेरा कर्तव्य आपके प्रति, पति का कर्तव्य पत्नी के प्रति, माता के प्रति, पिता के प्रति, भाई के प्रति, चाचा के प्रति, भाई के भतीजे के प्रति, देवरानी के प्रति, जेठानी के प्रति, सास के कर्तव्य बहू के प्रति, तो परिवार कितना अच्छा रहेगा। लेकिन क्या है, समाज में हर व्यक्ति होता है अपने अपने अधिकार की बात करो, तो परिवार यूं छिन्न हो जाता है। समझ गया? बात सिर्फ देश की नहीं कर रहा हूं मैं। परिवार एक साथ रहेगा तो समाज एक साथ रहेगा, समाज एकत्रित रहेगा तो देश भी मजबूत होगा। इट कैन नॉट हैपन ईदर वे अराउंड। तो ये एक भ्रम है, इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। तीसरा है, एक और अगला है, सफलता की बात कर रहे हैं, डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। तो क्या समझते हैं, मतलब सफलता में अभी आप सब सफल ही होने आए हैं ना यहाँ पर। एवरीबॉडी इज थिंकिंग आई वांट टू सक्सीड, आई वांट टू सक्सीड, राइट? सक्सीड होके करो क्या? हाउ डज इट मैटर? इज सक्सेस एन इंडिविजुअल थिंग? क्या आपका व्यक्तिगत लक्ष्य है ये? और इंडिपेंडेंटली आप सफलता सोच रहे हो क्या? अगर ऐसा सोच रहे हो तो ये गलत है। कर्तव्य के बोध से वापस आ जाओ, ब्रह्मांड के अगेन आई टोल्ड यू। इसके बाद भी जब भी आपको कोई शंका हो, आप देखना ब्रह्मांड, प्रकृति कैसे काम करती है। पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा कण नहीं है जो इंटरडिपेंडेंट नहीं है। इज द सन फंक्शनिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ एवरी अदर थिंग? इज द मून फंक्शनिंग इंडिपेंडेंट? इज द अर्थ फंक्शनिंग इंडिपेंडेंट? सोलर सिस्टम में सब एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है ना? पृथ्वी के ऊपर भी चले जाओ, जहां भी चले जाओ, आप यहां पर जब इंजीनियर बनोगे, कल आप ही कोई यंत्र की रचना करोगे,
कोई क्या उस यंत्र में कोई भी ऐसा चीज लगाओगे जिसकी वहां रिक्वायरमेंट नहीं है? Will you put anything, even the smallest of the nut or bolt or even 1 मिलीग्राम की भी चीज आप उसमें ऐसी लगाओगे जिसकी वहां आवश्यकता नहीं है? यार ऐसे जरूरत तो नहीं है, बट डाल देते हैं इसको भी एक बीच में, नहीं ना? तो सिमिलरली हमारी बॉडी में क्या कोई ऐसा सेल है विच इज फंक्शनिंग इंडिपेंडेंट ऑफ द रेस्ट ऑफ द बॉडी? को ठीक है यार, वो अपने को मतलब नहीं, मैं अपना इंडिपेंडेंट अपने रास्ते चल पड़ूं। होता है, जब भी ऐसा होता है बीमार पड़ते हैं। जब भी ऐसा कोई सेल बोलता है कि यार मैं अपने रास्ते ग्रो करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू हैव माई ओन इंडिपेंडेंट ग्रोथ ऑफ पाथ, वेदर इट इज इन सिंक ऑफ द रेस्ट ऑफ द बॉडी और नॉट, आई कुडंट केयर। जब भी कोई ऐसा सेल इस तरह से बढ़ जाता है, इट बिकम्स अ ट्यूमर एंड अ कैंसर, राइट? सो इधर वी डिस्ट्रॉय इट और इट डिस्ट्रॉयज द बॉडी। तो आपका सफलता जो है, इट कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट ऑफ द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी। या फैमिली में हो, यू कैन नॉट गो ऑन एन इंडिपेंडेंट पाथ कि मेरा ये सक्सेस का है, मैं तो चला, परिवार को आवश्यकता नहीं है, कोई मतलब नहीं, परिवार टूटे कोई मतलब नहीं, देश को आवश्यकता है, नहीं है, मेरा ये सक्सेस यही होगा, यही होगा। उदाहरण दे रहा हूं मैं कि भाई 75 साल हो गए आज़ादी के, स्वतंत्रता के, पाकिस्तान और हम एक साथ ही हुए थे ना। तो जिन चीज़ों को हम सफलता मानते हैं, राइट, जिन चीज़ों को हम सफलता मानते हैं, जिन चीज़ों पे हम एक दूसरे को बधाई देते हैं, वो तो 75 साल में वहाँ भी तो हो रहा है। वहाँ भी तो 75 साल में हर साल क्लास में कोई ना कोई, हर क्लास में फर्स्ट आ ही रहा है, कोई ना कोई स्कूल टॉप कर ही रहा है, किसी न किसी का बिजनेस सक्सेसफुल हो ही रहा है, कोई ना कोई फिल्म हिट हो ही रही है, कोई ना कोई स्टार बन ही रहा है, क्रिकेट का मैच वो भी जीत रहे हैं, वर्ल्ड कप भी एक बार वो जीते थे, कोई ना कोई वहाँ पर भी, जो जैसे हमारा इंजीनियरिंग का नेशनल कंपटीशन है वहाँ भी होता होगा, कोई ना कोई उसमें सेलेक्ट होता ही होगा। यहाँ जैसे IAS है वहाँ भी होता है, कोई ना कोई इसमें सेलेक्ट होता ही होगा। यहाँ जैसे NDA है, CDS है, वहाँ पर भी सेना में भर्ती करने का कंपटीशन है, कोई ना कोई सेलेक्ट हो ही रहा है। वहाँ पर भी वो सारी की सारी चीज़ें जिन पे सफलता मानते हैं, हम एक दूसरे को बधाई देते हैं, यहाँ पर कंग्रेचुलेट करते हैं फॉर योर सक्सेस, वो तो वहाँ भी हो ही रही हैं, बधाइयाँ चली रही हैं पिछले 75 साल से। उसके बावजूद ये देश उनका कटोरा लेकर बैठ गया है। उस सफलता क्या का अचार डालोगे? मैं सिर्फ कटोरे की बात नहीं कर रहा हूं, आए दिन खून हो रहे हैं, खूब बलात्कार हो रहे हैं, धोखा हो रहा है, चोरी हो रहा है, मारकाट हो रहा है, हिंसा हो रहा है, बम ब्लास्ट हो रहे हैं। व्हाट डू यू डू? यानी कि सफलता के जो मापदंड लेकर वो चले थे वो मिसप्लेस्ड थे। As a nation, they were misplaced when they thought that they are creating a nation simply because based on faith. तो मिल तो गया फिर, but it's not working, ना? That is precisely the reason this state is, the nation is in the state that they are today. Because they felt the definition, the aim, the success for which they were aspiring was wrong. Similarly, as societies and individuals, if we have wrong priorities in our nation, in our minds, जिसका कोई लेना देना देश के ओवरऑल गेम से, it is wrong. अगेन एज स्पोर्ट्समैन की बात कर रहा हूं मैं, इंडिपेंडेंट ऑफ द टीम का जो मैनेजमेंट का जो डिसीजन है कि दिस इज द पॉलिसी, इतने रन बनाने हैं और हमने ऐसे ऐसे खेलना है, तूने फास्ट स्कोरिंग करनी है, तुम दोनों उतरोगे ओपनिंग पेयर, यू विल स्कोर फास्ट, यू विल होल्ड ऑन द विकेट वन साइड, as a bowler you will try and hold on, he will try and whatever strategy is made, you go to play as per that strategy. Man, you cannot walk an independent path, however great a player you may be. तो इस राष्ट्र के पूरे नैरेटिव के अंदर में जो नेशनल गोल है, यू विल हैव टू फाइंड योर ओन सक्सेस विद इन दैट, एंड इवन इफ यू सक्सीड सो व्हाट। आप मान लीजिए वर्ल्ड कप में हम अभी चले गए, हमारी टीम वर्ल्ड कप में स्टार्ट करती है और हम खोलते कि नहीं मैं अपनी सक्सेस की सोचूंगा, आपने अपना सक्सेस सोचा, टीम का नहीं सोचा, सो व्हाट डू यू डू? टीम हार गई, गेम आउट। अब अगला गेम क्या करोगे? अपना टैलेंट लेके बैठोगे क्या? एंड इवन इन देखो उसमें भी क्या होता है, आई गिव यू क्रिकेट का ही एग्जांपल लो। सपोज हमने पहले बैटिंग करी, उसके बाद हमने सर्टेन नंबर ऑफ रन बनाए, उसके बाद हमारी बॉलिंग आई। अब यू आर ए बॉलर, राइट? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इंडिविजुअल सक्सेस को सेलिब्रेट मत करो। हम इंडिविजुअल सक्सेस को सेलिब्रेट इसलिए करते हैं कि हमें लगता है कि मेन बिगर सक्सेस जो है समाज का, परिवार का, देश का, उसको अचीव करने में मैंने अपना कंट्रीब्यूशन शायद किया है, तो आप सेलिब्रेट करते हैं, आप खुश होते हैं। तो आप, मैंने कहा ना, हमारी टीम ने, आप
क्रिकेट की टीम में हैं, आपने पहले बैटिंग करी, आपने एक स्कोर बनाया, मान लो 250 रन बनाए, उसके बाद लिमिटेड ओवर गेम है, वनडे गेम है, आप बॉलिंग करने आए, आपने बॉल लिया, सामने जो प्लेयर है उसमें जो ओपनिंग बैट्समैन है उसमें एक बहुत धुरंधर बैट्समैन है, वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन है, वही सबसे बड़ा थ्रेट है, वही सबसे बड़ा थ्रेट है। और लग रहा है कि आपने बॉलिंग करी, ओपनिंग बॉलर हो और आपने पहले बॉल पे उसकी विकेट ले ली, सो यू डिजर्व टू सेलिब्रेट, राइट? आप सेलिब्रेट करोगे ना, यार पहले बॉल पे ले ली, वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन है यार। व्हाई डू यू सेलिब्रेट? बिकॉज यू फील दैट मैं टीम की सफलता की संभावनाएं मैंने बढ़ा दी हैं, सबसे बड़ा थ्रेट मैंने गिरा दिया है, अब शायद मेरी टीम की जीतने की संभावनाएं बढ़ गई हैं, इसीलिए आप सेलिब्रेट कर रहे हो। नाउ उसी सिनेरियो में सपोज आप आउट ही नहीं कर पाते हो, ओपनिंग पेयर ही नहीं आउट हो रहा, हमने 250 रन बनाए, ओपनिंग पेयर आउट नहीं हो रहा, और उन्होंने 250 के 250 रन पूरे हो गए, 45 ही ओवर हुए हैं और 250 रन, एक भी विकेट आउट नहीं हुआ, 250 बराबर हो गया, एक रन और मारेंगे तो वो जीत जाएंगे, राइट? और आपके हाथ में बॉल लेती है, अब फिर उसी प्लेयर को जो मैंने पहले सिचुएशन में बोला था, स्टार प्लेयर, पहले बॉल पे आउट कर दिया था, अब सिचुएशन बी में अब आप 250 रन पे आप उसको फिर आउट कर देते हो, आप सेलिब्रेट करोगे? एक्ट तो वही है ना, आपने तो विकेट ली, आपके रिकॉर्ड में तो एक विकेट जुड़ा, आपको पता है कि यार आई हैव डन टू लेट, टीम के विजय की संभावनाएं नहीं है, अब एक या दो भी उड़ा दूंगा, तीन भी उड़ा दूंगा, तो एक ही रन तो बनाना है यार, टीम तो मेरी हारना अब निश्चित है, तो आप उस विकेट को सेलिब्रेट नहीं करोगे, चाहे आप लगातार 2 विकेट भी ले लो, आप सेलिब्रेट नहीं करोगे, बस ठीक है वहाँ आउट हो जाएगा, आप खड़े रहोगे, आप समझ रहे हो? बिकॉज इट डजंट मैटर नाउ, because your individual achievement is not good enough now for making the team win, so you do not celebrate, because your success now is pointless. Similarly, your success in life, if it is not in alignment with the success of your rest of the larger game, then it is pointless. Please understand that part. And also always understand, success की बात है, जैसे इसी point से बोल रहा हूँ मैं, success is always bigger first, then less, then less, then less. आपके अपने सफलता का कोई महत्व नहीं है, सबसे पहले, ठीक है ना, ये आप ध्यान में रख लेना। इसी से जुड़ा हुआ एक और बात बताता हूं मैं आपको। अब मैं ड्रीम्स की बात कर रहा हूं, ड्रीम्स भी आपको दिखाते हैं लोग, राइट? एवरीबॉडी सेज यू मस्ट ड्रीम, यू बीन टोल्ड यू मस्ट ड्रीम, एंड वंस यू हैव अ ड्रीम गो आफ्टर इट, कुछ भी करो, डोंट गिव अप, अचीव दैट ड्रीम। अगेन, if the dream is an alignment of the nation's aim, then it is fine. So, but एक और बात बता रहा हूं मैं, everybody says that your dream is very important, right? गलत बताया आपको गलत बताया। The dream that you have for this country will always come first, every single time. The dream that you have for the society will come next. The dream that you have for your family will come next. The dream that you have for yourself will come last, every single time, without exception. उल्टा करो इसको, आपके अपने सपने का कोई महत्व नहीं है। राष्ट्र रहेगा, पाकिस्तान में भी तो है ना, कई लोगों का ड्रीम सक्सेसफुल है, क्या करेगा अभी? टूटने वाला है वो। सीरिया में भी तो सक्सेस हुआ होगा, किसी किसी का ड्रीम पूरा होगा, क्या करेगा अभी? सो उल्टा करो इसको, राइट? सो ड्रीम बेस्ड ऑन दैट। और दूसरा, हवा में ड्रीम मत देखो, इल्यूजन में। स्टूडेंट्स ऑफ साइंस, यू डील विद फैक्ट्स, राइट? एक और है ना, वो हवा में रोमांटिक ड्रीम दिखा देते हैं लोग, उसका कोई आधार है नहीं है। सो आई एम नॉट टेलिंग डोंट ड्रीम, ड्रीम फॉर गोइंग टू, आप बनाओ स्पेसशिप बनाओ, हैव अ ड्रीम दैट यू लैंड अ स्पेसशिप वन डे ऑन सन, प्लीज डू दैट। बट देन कैन यू जस्ट ड्रीम बेस्ड ऑन एन इल्यूजन? बिकॉज वन यू स्टार्ट एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, यू स्टार्ट डीलिंग विद साइंस, यू स्टार्ट डीलिंग विद फैक्ट्स। वो फैक्ट्स तो फिक्स है ना, क्योंकि उस फैक्ट्स को, वो फैक्ट तो ड्रीम नहीं हो सकता, वो फैक्ट है। The gravitational force of earth is this, it will have to be overcome. The heat of temperature at sun is going to be this. How do we develop a metal which can withstand that temperature? वो तो नहीं यार, नहीं मेरा ड्रीम है यार, लैंड हो ही जाएगा यार। मैं दिन रात सोच रहा हूँ यार, पैशनेटली सोच रहा हूँ यार, ये लैंड करेगा, नहीं होगा ना यार। यू स्टूडेंट ऑफ साइंस ना, सो यू ड्रीम कुछ भी रखो, बट बेस इट ऑन सॉलिड हार्ड फैक्ट्स मैन। हवा में मत देखो, अदर यू गोट डिसअपॉइंटेड, फिर बोले आए दिन सुनते हो उसका ये सपना टूट गया, उसने सुसाइड कर लिया, क्योंकि सपना ही वाज बेस्ड ऑन इल्यूजन्स मैन। तो हैव अ ड्रीम, बेस इट ऑन साइंस, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू, फैक्ट्स आर
not in favor of you, or if you do not find a way, then recalibrate your dream. Right? भाई उसका हमारे को नहीं सामना कर पड़ा, सूर्य के अंदर जाने का तो नहीं करता, हाँ सूर्य के 100 किलोमीटर दूर तक जाने का है, तो लेट्स रिकैलिब्रेट, अंदर नहीं जाएंगे, यहीं तक वापस आ जाएंगे. राइट, दैट्स व्हाट यू विल डू ना. तो ये ड्रीम जो है हमेशा याद रखो कि पहला आपका ड्रीम लास्ट में आएगा, और ये ड्रीम जो है ना, मेरा ड्रीम पहले, इसी के कारण परिवार टूट रहे हैं. ओके, उसको भी बता दिया अपना ड्रीम इंपॉर्टेंट है, उसको भी बता दिया अपना ड्रीम इंपॉर्टेंट है. कल दोनों आप एक परिवार में बनाओगे, एक जोड़ा बनोगे, एक युगल जोड़ा बनोगे, वैवाहिक दंपति बनोगे. दोनों को सिखाया गया है डोंट गिव अप योर ड्रीम. मुझे लाल पसंद है, मुझे पीला पसंद है, आई विल नॉट गिव अप, आई विल नॉट गिव अप. तो क्या करूं फिर? लेट अस गिव अप ऑन द रिलेशनशिप. है नहीं, यही होगा ना. लेट्स गिव अप ऑन द रिलेशनशिप. देन मैं तो नहीं छोड़ूंगा, मेरे को तो जिंदगी भर बताया है डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम. मैं तो पिछले 25 साल से यही सपना दिन रात देखा है. व्हाई शुड आई गिव अप फॉर यू? वो बोले व्हाई शुड आई गिव अप फॉर यू? लेट्स गिव अप ऑन द रिलेशनशिप देन. राइट? तो हमारे वो नानियां दादियां में बेवकूफ की था, पूरी जिंदगी जो है परिवार के हिसाब से चल रही थी. बेवकूफ थी क्या? So please don't get into that. Firstly, dream is firstly is the nation first, then the society, then the family. Your dream will come last, and always based on your dream and facts. Because dream ठीक है, aim है, but now start dealing with facts. And if you can't find a way, then recalibrate your dream. And what is success? Success मैंने कहा नेशन का है, उसमें आपका रोल होना चाहिए. It is not important कि आप कहाँ हो. तो जो भगवान राम गए थे, तो राम का अपना रोल था. और ये ना सक्सेस मतलब एक और बता दिया गया आपका. सक्सेस मीन्स रीचिंग द टॉप. यही बोला ना, वन डे यू गोइंग टू बी ऑन टॉप. गलत बताया किसी ने. तो ऐसा तो नहीं था ना कि जो राम थे, मान लो इफ यू कंसीडर दैट एज एन आर्मी, तो राम वाज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, राइट, एंड लक्ष्मण वाज द वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ. ठीक है ना. तो लक्ष्मण ऐसा सोच रहे थे ये कब रिटायर होगा यार, मैं नंबर 1 बनना चाहता हूं. वाज ही थिंकिंग लाइक दैट? और हनुमान सोच रहे यार मैं तो ब्रिगेडियर लेवल पे हूं, ये लक्ष्मण हटे तो मैं बनूंगा. राइट? बट मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में तो ऐसे ही लगता ना. सो क्या वाज हनुमान लेसर सक्सेसफुल? वाज जामवंत लेसर सक्सेसफुल? वाज नल नील लेसर सक्सेसफुल? उस रामायण के युद्ध में जितने भी लोग थे, राम से लेके आखिरी वानर तक, सबकी सफलता का श्रेय बराबर है. प्लीज गेट दैट. As long as you contribute in the larger cause, नियति ने जो आपको शक्ति दी है, but by that I don't mean to say don't play your part. आपको नियति ने जितनी शक्ति दी, आपको 100% करना है. उस वानर को जितनी दी थी शक्ति, उसने अपना 100% किया. नल नील को जितनी शक्ति दी थी कि पुल बना सकता, उसने पुल बनाया. हनुमान जी को जितनी शक्ति दी, अपना 100% देना है. लेकिन तुलना नहीं करनी है कि मैं वो क्यों नहीं हूं, वो जब तक हटेगा नहीं, मैं उसकी पोजीशन पे नहीं बैठूंगा, तो मैं सक्सेस नहीं माना जाऊंगा, नंबर 1 पे पहुंचूंगा. नंबर 1 तो एक ही है यार, ये क्या पागलपन है. एज लॉन्ग एज द टीम विंस, दैट्स ओके ना. जब तक आप उस टीम में हो जो धर्म के मार्ग पर है और धर्म का कोई कार्य कर रहा है, वो पूरा सफल हो गया. तो वर्ल्ड कप जब जीतती है, कोई भी टीम जीतती है मैच, तो सारे के सारे सफल होते हैं. नॉट ओनली दैट गाय हु इज द कैप्टन, एवरीबडी सक्सीड्स. नॉट ओनली पीपल हु आर 11 प्लेयर्स हु आर देयर, द कोच बिहाइंड, द मैनेजर बिहाइंड, दैट मसाज करने वाला, दैट फिटनेस ट्रेनर, एंड वो एक बंदा है जो टीम के साथ चलता है, जो सबका सामान सबके कमरे में रखता है. एवरीबडी सक्सीड्स मैन, एवरीबडी इज डन इट्स रोल. जो उसकी नियति में, उस सामान रखने वाले की नियति में यही है कि मैं जो प्लेयर आएंगे उनका सबका सामान सबके कमरे में रख दूंगा, जिससे उनको कंफ्यूजन ना हो, दे कैन फोकस ऑन देयर गेम. दैट इज व्हाट इज ड्यूटी. ही इज आल्सो इक्वली सक्सेसफुल. अपना सामर्थ्य आप पूरा करो. आप सबका सामर्थ्य एक नहीं होगा. जिस ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, एवरीबडी इज नॉट गोइंग टू बी इक्वल. यू सी दैट आर यू डूइंग योर बेस्ट, यू जस्ट डू योर बेस्ट एंड यू आर सक्सेसफुल. दैट्स अबाउट इट. एंड बी सेटिस्फाइड दैट यू आर पार्ट ऑफ द राइट साइड. राइटियर साइड रहना बहुत जरूरी है. राइट? वहां पर तो फिर दूसरी तरफ रावण था. रावण वाज सक्सेस? नो. वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था ना, अपने बन तो गया था. मेघनाथ और कुंभकर्ण, वो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, they were in a higher post than this last warner on this side, but this last warner was more successful than Meghnad and Kumbhakarna. तो इतिहास हमेशा याद रखना, सिर्फ नायकों और खलनायकों से नहीं बनता है. इतिहास उन सारे लोगों से बनता है जो उस नायक का साथ देते हैं, और इतिहास उनसे भी बनता है जो उस खलनायक का साथ देते हैं. तो खलनायक वो अकेला व्यक्ति नहीं होता है, वो सारे लोग होते हैं जो उसके साथ होते हैं. वो सारे लोग भी होते हैं जो उसका विरोध नहीं करते हैं. वो सारे लोग भी विलेन हैं जो उसका विरोध नहीं करते हैं. वो सारे लोग भी विलेन हैं जो कुछ करते ही नहीं. राइट? यू ओनली डोंट हैव टू बी ए लीडर इन योर डेस्टिनी. अगर आपके भाग्य में हमेशा राम बनने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप में सामर्थ्य है राम बनने का,
प्लीज़ बनिए। नहीं बनने का है, जहाँ आपको जीवन में जहाँ राम मिल जाए, बोला ये राम है, और ये सफलता के मार्ग पर चलने का सामर्थ्य रखता है, ये मार्ग दिखाने का सामर्थ्य रखता है। आप उसमें जुड़ जाइए, आप पुण्य के बराबर के भागी होंगे। इस देश की विडंबना ये है कि एवरीबडी टॉक्स ऑफ लीडरशिप। मैं कहता हूँ इस देश में लीडरशिप की कभी कमी रही ही नहीं। समस्या ये रही है कि इस देश में फॉलोअर नहीं मिले उन लीडरों को टाइम पर, वरना अगर सारे लोगों ने सही लोगों का साथ दिया होता तो अकबर की सेना महाराणा प्रताप की सेना अकबर से छोटी क्यों होती, शिवाजी की सेना औरंगजेब से छोटी क्यों होती? आबादी की कमी थी क्या यहाँ पर? अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उस समय 34 करोड़ की आबादी थी, 34 करोड़ में से सिर्फ 3-4 लाख लोग अगर सुभाष चंद्र बोस के पहुंचते कि सुभाष बाबू आप बोलो, हम जान देने को तैयार हैं आपके साथ, तो ये सुभाष बाबू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे देश को कई वर्ष पहले स्वतंत्रता लाके हमारे हाथ में रख देते, और सबसे बड़ी बात ये होती कि वो इस देश के पहले प्रधानमंत्री होते, और हमारा देश कहाँ होता। So we failed not because we didn't have leaders. We failed not because we didn't have leaders. We had, but they didn't get the right followers. And I'm very sure ऐसे और कई नेता होंगे, ऐसे कई महाराणा प्रताप और शिवाजी हमारे देश में होंगे जिनको कोई सपोर्ट ही नहीं मिला, तो क्या करेगा? अकेला थोड़ा नहीं लड़ेगा कोई। So please understand, if you can be the Ram, please go ahead. But if you find a Ram, आंख बंद करके फॉलो करो man, without any envy. ठीक है? Okay, time is up. Okay, ठीक है। हाँ, right. One last point, I'll finish it off. एक लास्ट पॉइंट करके खत्म कर देता हूं। वन लास्ट इज शांति, राइट? वो वीडियो चलाएंगे शेर वाला, 5 मिनट्स मोर मैम, 5 मिनट्स मोर। हाँ, जस्ट 5 मिनट। ये शेरों का समूह है, बैठा हुआ है, शांति से बैठा है, बिल्कुल शांति से बैठा ना, राइट? कोई हिंसा कर रहा है, कोई झगड़ा कर रहा है? ये सामने वाले एसयूवी वाले आए, उन्होंने देखा भाई शेर बैठे हैं, वापस चले जाते, राइट? आराम से बैठे हैं, ये अपना जंगल है, ये उनका इलाका, अधिकार उनका है। ये हमारे मनुष्य की बेवकूफ़ी है कि जंगल के बीच में हमने सड़क बनाई है, और ये वापस जा रहा है, ठीक है ना? अभी देखना ये शेर प्रेम भी करेंगे। ये देखो प्रेम कर रहे हैं शेर, तो यहाँ शांति हो रहा है, प्रेम हो रहा है। बस बंद कर दीजिए। शांति, प्रेम, एवरीथिंग इज हैपनिंग, लव इज हैपनिंग, पीस इज हैपनिंग, एवरीथिंग इज हैपनिंग, राइट? व्हाई इज इट हैपनिंग? अगर यहाँ पर कोई कमजोर जानवर होता, कुत्ते होते, तो एसयूवी वाले रौंद के चले जाते, नहीं चले जाते उनको? तो प्लीज गेट दैट स्ट्रेट। इफ यू वांट पीस एंड हार्मनी एंड लिव इन लव इन द सोसाइटी, देन प्लीज बिकम पावरफुल। There's no peace and love happening and existing in this world if the people who want to live in peace and love are not powerful. ये गलत बता दिया गया किसी ने कि शांति का मतलब कमजोर रहना। प्लीज डोंट लिव अंडर दैट इल्यूजन। भ्रम मत रखना। अगर आप कमजोर हो तो आप नाटक मत करो कि मैं शांति प्रिय हूं। नो, यू विल नॉट बी। प्लीज गेट दैट वेरी स्ट्रेट। सो विद दैट आई एम टेलिंग यू, व्हेन यू गो अप, सो पीस का मतलब समझिए, यू विल हैव टू get up and be powerful. If you are powerful, there will always be peace. That is one. So I wish, hope and pray. The battle has just begun. The long list of points, everything cannot be covered. 70 साल का कचड़ा मैं 1-1.5 घंटे में नहीं आपको समझा सकता. But I hope you got an idea that what a kind of illusion that has been built. So I wish, and इस मार्ग में एक बात बताऊं आपको, ये मार्ग जब आप ऊपर पहुंचोगे, ये राष्ट्र आपसे बलिदान मांगेगा। आप में से हर एक व्यक्ति से स्वार्थ का बलिदान मांगेगा। आप लोगों में से जिसका भाग्य होगा उससे रक्त का बलिदान भी मांगेगा, और जो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली होंगे उनसे जीवन का बलिदान भी मांगेगा। धन्यवाद। जय मां भारती। Thank you so much, sir. Now I request respected Principal Dr. Archana Kirti Chaudhary Madam to present a memento to our respected guest as a token of love and respect. Please give a huge round of applause. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Now I request all the head of the department to join sir and ma'am for a group photograph. All the students, please stand up on your places for a group photograph. Thank you.